first of all, this is my and I've been freelancing for a while, and now here I am giving the workshop. Okay, just let me know if you can hear me properly or am I not audible? Voice is not clear again. Okay. Uh, is it clear now? Can you hear me now? Is still not, or is it the problem is still occurring? Can you please mention that in the chat box? Voice is very low and unclear. Okay, wait. Okay, can you hear me now? Okay, that's great. So first of all, what is graphic designing? Graphic designing is basically a 21st century skill which came into being in somewhere 1980s. Okay, first of all, let me know one thing. If you want the medium of this workshop in Urdu or in English. Both, yeah, obviously there will be words कि English में ही होंगे, but if you want both, okay, let's go for it. Okay. This is Rahma Yusuf. I'm from Karachi, Pakistan. I have done my master's and I'm a certified graphic designer, and I've been doing freelancing uh, okay. So ये मेरा introduction है, and I have not already done graphic designing, but audio video editing and 3D modeling. Currently 3D modeling is my passion, and moving on to another thing, I have told you about my professional degree. Now here I am telling you about my certificates, which I have in multiple things. And other things. So, the thing that I admire most about myself is I'm Hafiz Quran. So this is my introduction, and graphic designing is about having a creative mindset. कि जिन लोगों को aesthetics बहुत पसंद होते हैं, they like colors, they like to play with colors. It is still not clear. Voice issue. And can you hear me now? Okay. So I have given my intro. Let me repeat it. कि voice clear नहीं थी. So I have a professional degree, which is in space physics. I've done my master's in 2020 from University of Karachi. I am a certified graphic designer, and
I have been doing freelancing since a year regarding graphic designing and audio video editing. Okay. Currently, my passion is 3D modeling, and the thing that I like most about myself is I'm Hafiz Quran, and lastly, I'm from Karachi, Pakistan, and I'm working as a project manager in an NGO, which helps underprivileged people to, get to the privileged level. And I'm training undergrads from a year or so. Okay. So, and let me know something about the platform as well on which you are getting this workshop. This is basically upcon trainings, जो क्या कहते हैं managed and run by female oriented female oriented program है जहाँ पे क्या कहते हैं आप सिक्योर हैं आप मतलब फीमेल टू फीमेल कनेक्शन है आपके इंस्ट्रक्टर्स जो होंगे वो फीमेल होंगे आपकी जो ये वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जाएंगी ये फीमेल प्रोवाइड करेंगी और इन वर्कशॉप्स में सिर्फ फीमेल ही अलाउ होंगी ओके अब कौन ट्रेनिंग का बेसिकली पर्पस क्या है पर्सपेक्टिव क्या है कि ट्रेनिंग द फीमेल टू कम फॉरवर्ड टू ऑन द फ्रंट लाइन with getting all the privileged skills. So graphic designing is one of them. Graphic designing basically came into being in 1983. ये और इससे पहले देयर वाज न्यूज़पेपर्स एंड थिंग्स तो वहाँ से क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्ड यूज होना स्टार्ट हुआ वी हैव मल्टीपल स्किल इन दिस एरा हमारे पास बहुत सारी स्किल्स हैं टू अर्न ऑनलाइन कि हम इजीली ऑनलाइन अर्निंग कर सकें हम घर बैठे कुछ सीख सकें और सम पीपल हैव दोज क्यूरियोसिटी और दोज passions to create something to play with colors to become aesthetic so there are multiple options for that and graphic designing is one of them graphic designing ये कोई बहुत एक छोटी सी फील्ड नहीं है you have a graphic designer for different purposes कि इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं इसको डिफरेंट फील्ड्स में हम डिवाइड करते हैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसके पास मल्टीपल स्किल सेट होते हैं वो सिर्फ किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर रहा होता आपके पास किसी एक सॉफ्टवेयर पे ग्रिप नहीं होती आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे ग्रिप होती है ओके सो मूविंग ऑन टू द next page what we have covered in this presentation content of this presentation are first of all the introduction about graphic designing, introduction about the platform, introduction about where will it take you. And the part 2 is message from our leaders. It means the platform on which we are on, message from them. And now the third thing is the types of graphic design. And then we will discuss the softwares which we will discuss or we will going to use in the graphic design. And the part 5 is how much earning potential does this field have. And the part 6 are acknowledgements यानी वाकई लोग अर्निंग कर रहे हैं इस फील्ड से या नहीं कर रहे हैं कितनी अर्निंग किसने कर ली है और कितना पोटेंशियल अभी बाकी है कितनी जो है कंपनीज हायर करती हैं so it's about that now moving on to the presentation and to the introduction of graphic design अब आप लोग ये सपोज कर लें दैट आपको कुछ सेल करना है ऑनलाइन कुछ आपने अनाउंस करना है ऑनलाइन एंड आपको क्या कहते हैं यू नीड समथिंग क्रिएटिव और ब्यूटीफुल जो क्या कहते हैं लोगों को अट्रैक्ट करे कि it will be attract audience and enhance the reach of your announcement or business आपने किसी को किस तरह से अट्रैक्ट करना है अगर आपने
कस्टमर बनाने हैं तो कस्टमर्स किस तरह से अट्रैक्ट होंगे आपके प्रोडक्ट से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट देख रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे। ये फिजिकल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप क्या कहते हैं इजीली किसी को भी कन्विंस कर सकते हो कि ही और शी कैन बाय दिस थिंग। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमारे पास अवेलेबल हैं एग्जांपल्स जो सेल करते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज, कि इंश्योरेंस के लिए हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट जगह पर या अपने ऑफिस में बैठकर ही लोगों को परसुएड कर रहे होते हैं टू बाय द इंश्योरेंस फ्रॉम दिस और दैट कंपनी। ठीक है, तो अब ये मैसेज आप तो सामने नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, अब आप ऑनलाइन वर्ल्ड में हैं। अब आपको मैसेज पहुंचाना है, आपको अनाउंसमेंट करनी है, भाई आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस और मैं ये चीज सेल करने लगी हूँ। तो आप ये 2 लाइन लिख के क्या कहते हैं कहीं पे सेंड करोगे तो पीपल मोस्टली विल इग्नोर, कोई भी क्या कहते हैं आपको इतनी अटेंशन नहीं देगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जो है कुछ अट्रैक्टिव सा बनाने की कोशिश करोगे कि लोग अट्रैक्ट करें। अब लोग क्या कहते हैं ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन होता है लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, क्या करते हैं वो लोग स्किप इट, यार छोड़ो, स्क्रॉल डाउन करते हैं। और हमारे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी है, इतना पढ़ के क्या करेंगे, इतना टाइम वेस्ट होगा। भले वो इम्पोर्टेंट हो, उसके अंदर बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो, लेकिन फिर भी लोग स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आपने पावरफुल मैसेज देना है लोगों को तो आप क्या करेंगे, उस पावरफुल मैसेज को देने के लिए आपने लोगों को अट्रैक्ट भी करवाना है। आपने जस्ट सिंपली मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर देना, आपने जस्ट सिर्फ वर्ड्स से काम नहीं लेना, आपने कलर्स से काम लेना है, आपने पिक्चर्स जो हमारी आजकल बहुत ज्यादा फेमस हैं उनसे भी काम लेना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आप थोड़े से बैक एरा में चले जाओ, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया और ऐड में न्यूज़पेपर पे अगर आपको कलर की जगह मिल गई तो फिर उसमें आपने 2-3 अच्छी सी तस्वीरें डाली, अपनी ये डाली कि ये प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स की प्राइस इतनी है, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कलर पेपर पे जगह नहीं मिली ब्लैक एंड वाइट में तो फिर आपने अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ब्लैक एंड व्हाइट के सिंबल से आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया कि दिस इज दिस काइंड ऑफ बिजनेस एंड हम यहाँ पे इस तरीके से ये सेल कर रहे हैं। अब फिर आप थोड़ा सा और आगे मूव करो तो फिर लोग क्या कहते हैं रेडियो की तरफ ज्यादा थे। रेडियो पे कोई प्रोग्राम आता था, उनके इन बिटवीन बहुत सारे एड्स आते थे, लोग क्या करते थे सुनते थे एंड फिर वो ट्राई करते थे, ट्राई करने के लिए वो चीज बाय करते थे। तो ये हमारे पास क्या होती थी, साउंड मार्केटिंग ब्रॉडकास्ट होता था रेडियो पर, टीवीज पर। ठीक है, ये भी एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन होता था, ये भी हमारे पास ऑनलाइन एक स्ट्रीम हम यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। अब अगर हम कोई विजुअल मीडियम यूज करें जहाँ पे पिक्चर्स वीडियोस ये सब रिप्रेजेंट करती हों, जहाँ पे टाइपिंग, जहाँ पे सिंबल्स यूज हो सकते हों, तो वो क्या करेगा, जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूज़ करते हो, अट्रैक्टिव कलर्स यूज़ करते हो, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, दे ट्राई टू रीड इट, और वो चाहेंगे उसे सेव करें, उसको पढ़ें कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन बेसिकली बिहाइंड, कि क्या मैसेज है और ये किस चीज़ की कंपनी है। अब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी अगर हम फूड ब्रांड्स को देख लें, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, तो इन सब ने क्या किया है, सबको पता है KFC है, मैकडोनल्ड्स है, लेकिन इनके अपने लोगो हैं, इनकी एक अपनी विजुअल प्रेजेंटेशन है, क्योंकि वर्ल्ड एडवांस होती जा रही है। अब लोग फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा कहाँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन वर्ल्ड में है। लोग क्या कहते हैं आपकी वर्चुअल प्रेजेंस को देखते हैं। अब अगर हम कोई चीज खरीदने जाएं तो हम क्या करते हैं, किसी ग्रुप पे पोस्ट करके कि यहाँ से आइडिया ले लेते हैं, कि यहाँ से रिव्यूज चेक कर लेते हैं इनके पेज से। तो लोग क्या कहते हैं विजुअल्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू कि फिजिकली वो किसी से जाएं, पूछें कि यार यहाँ से मैं खरीद लूँ ये, अच्छा ये जो आपकी सर्विस है या ये जो चीज है वहाँ से आप खरीदना पसंद करते हैं, इस तरीके से।
ठीक है। अगर क्या कहते हैं आप अपने लेटर में, आप एक लेटर लिख रहे हैं, स्कूल में सबने लेटर लिखे होंगे, हम सब लेटर लिखते हैं, तो लेकिन उसी लेटर में अगर आप एक लोगो ऐड कर दो तो उससे क्या होता है, लोगो ऐड करने से वो प्रोफेशनल लगने लग जाता है कि भाई हाँ ये इस कंपनी से रिलेटेड है या इस जो है फैमिली से रिलेटेड है। तो बेसिकली ग्राफिक डिजाइन का सबसे इनिशियल और बेसिक पार्ट जो होता है वो लोगो, जो रिप्रेजेंट करता है आपको, आपके आप क्या सेल कर रहे हो उसको और आपकी ब्रांड को। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो ये हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन हो गई कि हमने विजुअल कम्युनिकेशन किसके थ्रू की, हमने लोगो के थ्रू की, हमने पिक्चर्स के थ्रू की, हमने सिंबल्स के थ्रू की, हमने वर्ड्स के थ्रू की, क्योंकि हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं है और ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि वो हमारी ऑडियो को 2 घंटे की सुने कि ये चीज क्यों जरूरी है और क्यों नहीं। पहले लोग जो है इन्फोमर्शियल्स बनाते थे। इन्फोमर्शियल्स में क्या होता था कि अगर उन्होंने कोई चीज लॉन्च की है तो जो है उसमें वो लोग पूरा उसे एक्सप्लेन करते थे कि इसे ऐसे यूज करना है, किसी भी टीवी शो में जाके कि इसका ये यूज है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके ये नुकसानात हैं, तो ये सब वो डिस्कस करते थे। अच्छा, वो बहुत लेंदी इन्फॉर्मेशन होता था, कुछ लोग स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में ही स्किप कर देते थे, कुछ लोग देखते थे तो वो उसमें फन एलिमेंट ऐड करते थे कि वो उसे देखें। तो now coming on to the presentation of graphic design, मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दिया। अब ग्राफिक डिजाइनर्स जो है ये सिर्फ क्या कहते हैं हाथ से बनाई हुई वेक्टर आर्ट्स पे काम नहीं करते, ये खुद भी शेप से आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन बी पेंटेड, इट कैन बी फोटोग्राफ्ड, इट कैन बी अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस। तो ये जो है ये लेटर फॉर्म्स में भी कोई चीज बना सकते हैं। अगर आपने देखा हो किसका लोगो है लेटर फॉर्म में, कोई मुझे बताएगा कि कौन सा लोगो लेटर फॉर्म में मौजूद है? Can anyone tell me? Please write in the comment box किस कंपनी का लोगो लेटर फॉर्म में है। Yes, very good, very good examples are there. Perfect. So there are many brands जिनका जो है logo letter form में, like KFC, and someone mentioned Adidas as well. So here Adidas. लेकिन you can see one thing कि these are not only words, it include graphics as well. पेप्सी का लोगो इट्स काइंड ऑफ अ बॉल, वो वर्ड फॉर्म में नहीं है। नाइकी के पास भी ग्राफिक्स है ना लोगो। एंड व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? सो नाइकी हैव अ टिक मार्क ऑन द लोगो, KFC and Adidas. So KFC also has some graphics. It's like here. KFC have a face of an old man who is making the chicken. KFC is basically a short form of Kentucky Fried Chicken. So let's move back to our presentation. We have discussed the basic part of logo कि ये हमारे पास जो है लोगो है। ठीक है, अब हमारे पास ये लोगो हैं। लोगो कितनी टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं? कुछ लोगो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बेस्ड लोगो, कि उसमें आपको कोई भी इमेज नहीं मिलेगी, कोई भी वेक्टर आर्ट नहीं मिलेगी। एंड कुछ लोगो जो होते हैं सिर्फ क्या होते हैं, इमेज बेस्ड होते हैं, जैसे पेप्सी का लोगो, जहाँ पे भी आप वो ब्लू और रेड कलर की बॉल देखते हो हाफ हाफ, आपको होता है यस इट इज पेप्सी। तो कुछ लोगो इमेज बेस्ड होते हैं, कुछ लोगोज जो होते हैं
वो उनमें वेक्टर आर्ट भी इंक्लूड होती हैं, उनमें टेक्स्ट भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अब ये वेरियस टाइप्स के होते हैं। अब अगर आपने टीवी कमर्शियल्स देखे हो तो वहाँ लोगो एनिमेट होकर आते हैं, आइदर वो टेक्स्ट हो या वो किसी भी फॉर्म में हो। बुक्स अगर आपने देखी हो तो पब्लिशर का नीचे एक लोगो बना हुआ होता है। मैगजीन्स पे हर मैगजीन का अपना एक लोगो होता है फ्रंट कवर पे, जो सबसे ऊपर हेडलाइन में लिखा हुआ होता है। हर चीज का, इवन हम विंडोज यूज करते हैं, आपको पता है विंडोज का लोगो दिस कोने में होता है, बहुत छोटा सा, इट्स काइंड ऑफ 4 बॉक्सेस टुगेदर। तो विंडोज का अपना लोगो होता है, ठीक है। तो डिजाइनर्स क्या करते हैं, ये लोगोस क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइपोग्राफी, images, symbols and other things to convey messages. Okay, so now move on to the message from our leaders. So ये मैंने बात डिस्कस की थी, लेट मी डिस्कस इट अगेन कि क्या मोटिव है इस प्लेटफॉर्म के बिहाइंड, इस ग्राफिक डिजाइनिंग वर्कशॉप के बिहाइंड। इट इज टू provide the best solution to the ongoing problem। देखें, हम लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन में there are no physical presence outside but it increased online audience। तो गूगल की अभी रिसर्च हुई थी एंड उन्होंने देखा कि ऑनलाइन ऑडियंस जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। यानी जो रेट था पहले अगर 2 बिलियन था तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 बिलियन। आई एम जस्ट you know explaining it for example, it's not exactly that much। सो ये हमारा यहाँ पे मोटिव है कि हम जो है वुमेन को फ्रंट लाइन पर लेकर आए ताकि वो खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल हो, अपनी फैमिली को भी स्टेबल करें। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट किचन मनी, it's about creating an asset। There are multiple skills out there who which required online। आपको उसकी ऑनलाइन बहुत सारी क्या मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी, आपको उसका वर्क मिलेगा, आपको उससे बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको उससे लर्निंग मिलेगी। अच्छा, अब हमारे पास कोई एक स्किल होती है, सपोज दैट आपके पास स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग की, या आपके पास स्किल है कंटेंट राइटिंग की। अब अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की भी स्किल आ गई, आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी स्किल आ गई, तो आप क्या करोगे, आप इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ डेज, बट आपके पास जो आपकी टेक्नोलॉजी है उससे आपकी कितनी बनती है, आप उससे क्या क्या अचीव कर सकते हो, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। आपके पास बेसिक स्किल्स हैं कि आप जो है ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग को कंबाइन करके अपना एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सको। ठीक है, पैसिव इनकम बेसिकली क्या होता है कि आप एक दफा उस में एफर्ट करके उसे स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद वो जो है साइड हसल में आपको क्रिएट करके देता रहता है मनी। तो वी आर हेयर to provide you the best training under the best trainer। Okay, I'm getting back to your question, Nida। Let me complete this। So we are here to provide best training under the best instructor ताकि आप खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल हो, और ना सिर्फ आप खुद हो बल्कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, एंड इन अपकमिंग डेज you can able to teach others as well। Okay, Nida, I have a question। I'm keen on drawing things। Okay, it's good if you are interested in drawing, then you will be the best student of graphic designing। यस, बाय हैंड आप करते हो तो बाय हैंड हमारे पास इलस्ट्रेटर में क्या होता है, आपने जो ड्राइंग ड्रॉ की हुई है आप उसे वेक्टर आर्ट के तौर पर पेन टूल से इलस्ट्रेटर में ड्रॉ करते हो। ठीक है, जब आप उसे ड्रॉ करते हो पेन टूल के साथ कंप्यूटर में, तो फिर उसमें आप अपने हिसाब से कलर्स करते हो, एडजस्टमेंट करते हो, तो ये आपके पास एक वेक्टर आर्ट क्रिएट हो जाती है। या फिर डिजिटल पेंटिंग, वो एक पूरी अलग और बहुत वास्ट फील्ड है। कुछ लोग उसमें बहुत जल्दी बहुत एक्सेल हो जाते हैं, कुछ लोग टाइम लेते हैं उसमें एक्सेल होने में, क्योंकि कलर्स को अंडरस्टैंड करना, वेयर कहाँ हमें लाइट यूज करना है, कहाँ शेडो होना चाहिए, कहाँ डार्क होना चाहिए, कहाँ टोन कैसी होनी चाहिए, तो इट मैटर्स। ओके, तो ग्राफिक डिजाइनिंग वुड वर्क बेस्ट फॉर यू if you are interested in drawing things, and Illustrator is the best app for drawing multiple vector arts and other sceneries or background or storyboarding। Okay,
नाउ वी डिस्कस द लोगो। लोगो किस तरह के होते हैं? अब लोगो का मैंने आपको बताया कि हमें जब भी अपना मैसेज कोई इफेक्टिवली देना होता है तो हम अपनी, इफ वन इज नॉट गुड एट हैंड ड्राइंग, इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको हैंड ड्राइंग आनी चाहिए। हैंड ड्राइंग में अगर आप ड्राइंग में अगर आपको इंटरेस्ट है देन इलस्ट्रेटर इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू प्रोसीड। अगर आपको हैंड ड्राइंग नहीं आती तो हमारे पास डिजिटल टूल्स इसीलिए हैं, हमारे पास शेप्स इसीलिए हैं, हमारे पास जो है प्रीसेट्स इसीलिए होते हैं कि आप वहां से क्रिएट करो। तो इट समटाइम्स योर ड्राइंग इट डजेंट मैटर। कुछ देखें, अब ग्राफिक डिजाइन की फील्ड बहुत वास्ट है। आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे ड्राइंग ओरिएंटेड वर्क भी मिलेगा, आपको यहाँ शेप्स ओरिएंटेड वर्क भी मिलेगा, आपको यहाँ मिनिमल वर्क भी मिलेगा, आपको क्या कहते हैं सिर्फ एक ही चीजें मिलेगी, आपको डिजिटल पेंटिंग भी मिलेगी, वहीं पे आपको शेप्स की फॉर्म में लोगो भी मिलेगा। अगर आप एडिडास का लोगो देखो तो आपको लगेगा आप इजीली से ड्रॉ कर सकते हो, है ना। इसमें सिर्फ क्या होता है कि आपको स्ट्रांगली अपना मैसेज कन्वे करना है, आपने अपनी एक कलर थीम बनानी है। हर ब्रांड की अगर आप नोटिस करो एक कलर थीम होती है, हमेशा फूड ब्रांड्स की रेड येलो में होगी, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपका एपेटाइट बढ़ाता है। ठीक है, इस तरह कपड़ों की ब्रांड्स की एक डिफरेंट कलर थीम होती है कि वो लोग को अट्रैक्ट करे और लोग क्या कहते हैं बाय करें। तो ऐसी थीम्स क्रिएट की जाती हैं। इसी तरह अगर आप कार्स की वेबसाइट को ऑन करके देखो, वहाँ की थीम अलग होगी। तो हम अपनी कलर थीम बनाते हैं और उस पर हम, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना बिजनेस कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको हैंड ड्राइंग आनी चाहिए। और अगर आप हैंड ड्राइंग बहुत रफली भी स्केच करो और फिर आप उसे लाके इलस्ट्रेटर पे ड्रॉ करो, तो लाइक यू कैन एडजस्ट टूल्स फ्रॉम द साइड एंड फ्रॉम द कॉर्नर्स फ्रॉम हेयर एंड देयर, तो वो इतना इश्यू आपके लिए क्रिएट नहीं होता। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट जिसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग इज द बेस्ट थिंग टू लर्न। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, आर्ट और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या, जिसपे हम ड्रॉ कर रहे हैं, आर्ट क्या, हमारी स्किल्स, हमारी सोच जिसको हम ड्रॉ आउट कर रहे हैं। ठीक है, जो डिजाइनर है उनके पास जो है बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं कि एक ट्रायंगल से कौन कौन सी शेप बन सकती हैं, एक स्क्वायर से आप किस तरह से अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, आप एक स्क्वायर को कट करके कैसे मैसेज कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है, एक सर्कल है, उसको आपने कट कर दिया तो उसमें से आपको क्रीसेंट मून मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू वर्क, कि आप जो है अपनी क्रिएटिविटी बाहर लानी, कि कैसे आप चीजों को लेकर क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप फ्यू शेप्स को लेकर बहुत सारी डिफरेंट चीजें बना सकते हो जो क्या कहते हैं लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अब हमारे पास जो है इमेज से लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मैम कैन वी मेक लोगो फॉर विद लोगो मेकिंग एप्स? यस यू कैन मेक इट, लेकिन होता क्या है कि अगर आपका लोगो प्रोफेशनल डिजाइनर डिजाइन करे तो इट विल बी समथिंग डिफरेंट, कि वो आपके लोगों को मिनिमलाइज कर देगा, आपके लोगों को एक क्रिएटिव और प्रोफेशनल लुक देगा। Mostly professional companies don't use logo making apps, they use graphic designers for this services, क्योंकि हमें अपनी color theme को mention करना होता है और usually these logo makers have इतनी उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, आपको वो फॉरेन से ऑप्शन दे देते हैं, बाय दीज इट इज क्राउन्ड और समथिंग, ये डायमंड पैकेज में है, प्रीमियम पैकेज में है, तो बहुत ज्यादा आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। बाकी आप अपना लोगो जो खुद डिजाइन करो, अपनी क्रिएटिविटी खुद शो करो फ्रॉम द स्क्रैच, इट इज समथिंग डिफरेंट। सो नेक्स्ट थिंग, एंड यूज इट फॉर आवर पेज और आवर फोटोग्राफ्स। यस, फोटोग्राफ्स के लिए तो इजीली आप ऑनलाइन लोगो मेकर से लोगो बना के आप यूज कर सकते हो, उसका मसला नहीं होता। बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रांड और समथिंग डिफरेंट, देन यू हैव टू डिजाइन लोगो बाय योरसेल्फ or hire a professional designer, and you can't sell these logos to the client, it is inappropriate, क्योंकि वो वहां से जाके खुद भी बना सकते हैं ना, उनको अगर क्रिएटिविटी नहीं चाहिए होती तो वो आपके पास आते ही नहीं। इट विल नॉट बी ओके कि आप ये लोगो मेकर से बने हुए लोगो सेल नहीं कर सकते, इट इज नॉट ओके। बट कुछ लोगों का अपना पर्सपेक्टिव होता है इस बारे में, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लोगो मेकर से बनाए हुए लोगो क्लाइंट्स को सेल ना किए जाएं, बल्कि खुद अपनी क्रिएटिविटी शो की जाए।
और ज़रूरी नहीं आप अपने माइंड से बनाएं। अगर सपोज दैट आपको किसी फूड कंपनी का लोगो बनाना है, आप जाएं सर्च करें फूड कंपनीज लोगो, तो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स आउट देयर। लाइक मैं आपको एक शो भी कर देती हूँ। लोगो आइडियाज और डिजाइन हेयर, कितने मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। टेक्स्ट एंड इमेज, सिंबलिज्म, हर चीज ओनली टेक्स्ट बेस्ड, वर्ड्स में ही कुछ आपने ऐड कर दिया, तो ये सारी आपके पास क्या है। अब जब आप इन सबको देखोगे तो जाहिर सी बात है, आपने सपोज दैट एक कॉफी शॉप खोलनी है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे कॉफी, या चलो आपने फूड कंपनी लोगो पिज्जा कर देते हैं। जैसे अगर हम पिज्जा करें तो हेयर, ये कितने डिफरेंट आइडियाज आपके पास आ गए हैं। सॉरी, ये उनके इस पे चलेगा। पिज्जा कंपनी नेम, पिज्जा को उन्होंने बॉईल किया हुआ है, पिज्जा यहाँ से चीजी लग रहा है, पिज्जा को कट किया हुआ है। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन फॉर जस्ट ओनली फॉर पिज्जा, लाइक यू नो हाउ चीज इज मेल्टिंग एंड हियर बोर्ड पर पिज्जा है आपके पास। तो ये सब क्या है, इन्होंने खुद डिजाइन किए हुए हैं। अगर आप इन सबको देखोगे, आप टिल द एंड ऑफ द पेज जब देखते हो, तो आपके माइंड में खुद ब खुद आइडियाज जनरेट होने लगते हैं कि जो है यार, इसको अगर हम इस तरह से चेंज करें तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, ये कहलाती है इनोवेशन। कि आपने किसी का लोगो देखा, आपको अच्छा लगा, सपोज दैट कि मुझे ये वाला लोगो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, मैं सोचूं यार ये कलर इसका मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, इसको मैं एक साइड से इस तरह की शेप दे देती हूँ, एक साइड से मैं चीज की शेप दे देती हूँ। तो इट्स बेसिकली मैं इसमें इनोवेशन लेकर आ रही हूँ। इसमें मैं इनोवेशन लेकर आई, मैंने अपने कंपनी नाम का फॉन्ट चेंज कर दिया, मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे जलपिनोस की जगह ऑलिव्स ऐड कर दिए, मैंने पॉइंट मार्क और ऐड कर दिए। तो ये आपने आइडिया एक आपके सामने आया, तो उससे आपने आइडिया जनरेट किया और फिर उसको इनोवेट किया, एंड नाउ यू हैव अ होल ब्रांड न्यू लोगो और यू नो आइडिया और क्रिएटिविटी। तो इसलिए so next question is, I also want to ask, we are not designers, so what we can use for online business? If you are not designer, to go for logo making app, or I will recommend hire a designer, because it will give vibes to your business. Otherwise it would be fine if you go for logo maker, but there are many logo maker. You can go for, let me represent you a website which is very good. Okay, here it is canva.com, and it have multiple options like Instagram story, Instagram post, presentation, logo. You can go for a logo and you can design it from the preset, or choose the one and edit it according to your needs. But it would be entirely different अगर क्या कहते हैं आप अपनी creativity से बनाएंगे, and you will be satisfied with it. Okay. So there are other websites as well. Multiple websites are for logo making. Just search on the Google logo maker. So there will be many websites that will be popped up, but a professional designer, give a different vibe than these logo makers. Okay, so image-based logo. If how can we say? Let me give you an example of an image-based logo so that you can understand clearly. Here, Twitter, Pepsi has the image-based logo. Apple, हम Apple देख के हमें पता चल जाता है it is iPhone, and there are many logos which are image-based. NASA, these are looking like a letter, but these are not letter. Okay, and
We have Starbucks. It include very, different and unique art. So we have multiple image-based logos are here. And now we have some type-based logos. We have to see that as well कि हम लोग easily differentiate कर सके. FedEx, Chanel, गूगल का हमें पता है स्पेसिफिक कलर है और हम उसको देख के ही इजीली वो हो जाते हैं कि हाँ ये गूगल है. लोड भी हो रहा होता है गूगल, तो गूगल की दीज कलर्स एंड हमें पता हो रहा होता है कि ये भाई ये गूगल की तरफ आजकल के ब्रांडिंग सिस्टम को यूज करते हैं. उबर, एयरबीएनबी रिलेटेड कहते हैं. सॉरी. ओके, रिप्लाई देयर क्वेश्चन. ग्राफिक डिजाइनिंग में पहले हमें क्या लर्न करना चाहिए एंड कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए. ग्राफिक डिजाइनिंग में मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं. अब इट डिपेंड्स के आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहती हैं. आप डिजिटल पेंटिंग करना चाहती हैं, आप वेक्टर आर्ट पे वर्क करना चाहती हैं, आप फोटो एडिटिंग करना चाहती हैं, आप बैकग्राउंड एडिटिंग करना चाहती हैं, आप कुछ क्रिएट करना चाहती हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन दैट. तो फिर आपको सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया जाएगा. वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में 5 बेसिक सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड होते हैं. अगर आपने वो लर्न करने हैं तो दैट इज गुड. लेकिन फिर भी आप जो हैं लोगो डिजाइनिंग के लिए हम बेसिकली इलस्ट्रेटर यूज करते हैं और कोरल ड्रॉ, जहाँ पे हम डिफरेंट शेप्स की मदद से, पेन टूल की मदद से लोगोस को क्रिएट कर रहे होते हैं. ठीक है. पोस्टर डिजाइनिंग, देखिए ये ऐसी चीज है, आप कोरल ड्रॉ में भी कर सकते हो, आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हो, आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो. मैं पोस्टर डिजाइनिंग फोटोशॉप में करती हूँ बिकॉज कि मेरा हाथ फोटोशॉप पे ज्यादा सेट है. कुछ यूजर इंटरफेस ऐसे होते हैं कि वो आप के लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल होते हैं, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं. तो मुझे फोटोशॉप के ऑप्शन ज्यादा अच्छे लगते हैं. So what are those 5 softwares? Photoshop, Illustrator, Adobe CorelDRAW, Adobe InDesign, and Lightroom. These are the 5 softwares. वो मैं आगे भी आपको दिखा दूंगी. ठीक है. And you are being correct. So we have seen the image-based and type-based logos. Now let's go for another one, which is image and type both included. डिजाइनर इस तरह के लोगो बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उनको क्या कहते हैं, इजीली इसमें मैसेज कन्वे हो रहा होता है कि किसी बंदे ने अगर आपका लोगो देखा और सपोज दैट वो नहीं जानता, अब कोई बंदा है जो स्लम से है, उसको पता ही नहीं है स्टारबक्स क्या होता है, तो अगर वो स्टारबक्स का लोगो देखेगा तो क्या उसे पता चल जाएगा कि व्हाट इज स्टारबक्स, बिकॉज देयर इज अ कोइन ऑन इट. और वो ना कॉफी पी रही है ना कोई शेक पी रही है कि उसे पता चल जाए कि भाई स्टारबक्स इसलिए यूज करते हैं लोग. इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग. तो वो कंफ्यूज हो जाएगा. तो इसलिए डिजाइनर्स अक्सर क्या करते हैं, इमेज और टाइपोग्राफी को कंबाइन करके लोगो बनाते हैं कि जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. वो ऊपर उसने क्वीन देखी, नीचे उसने स्टारबक्स पढ़ लिया, ओ ये तो स्टारबक्स है, स्टारबक्स. फिर वो किसी से भी पूछेगा, किसी को भी कहेगा तो इट्स लाइक वो बोले अच्छा हाँ स्टारबक्स ये तो इसलिए यूज होता है. तो डिजाइनर जो है अक्सर इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं. जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक चीजों में इनोवेशंस नहीं आती.
तो चीज़ों में इनोवेशन लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं सिमिलर आइडियाज। जब हम आइडियाज को सर्च कर लेते हैं एंड देन वी केम आउट कि यार इसको इस तरह मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, तो वो एक नई चीज बन जाती है, वो एक न्यू क्रिएटिविटी हो जाती है। तो ये चीज आपको डिजाइनर बनाती है। ठीक है, जब आप अपना माइंड यूज करके कि यहाँ से मैं ये शेप ऐड कर दूंगा, यहाँ से ये रिमूव कर दूंगा, यहाँ ये कलर थीम में ऐड कर दूंगा। डिजाइनिंग में शेप्स भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी आपकी कलर थीम इंपॉर्टेंट होती है, कि आपको अपने ब्रांड का मैसेज उस कलर थीम में कन्वे करना है। अगर आपने डार्क थीम यूज की है तो अब आप लाइट कलर की थीम नहीं बना सकते अपनी अगली पोस्ट के लिए, इट वुडंट लुक नाइस। तो मैं आपको अपकॉन का अगर दिखाऊं पेज तो यू विल बी क्लियर। तब तक मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। ये टाइपोग्राफी होती है टाइप बेस्ड लोगों के, वहां से नाम आ रहा होता है। तो अपकॉन ट्रेनिंग का अगर आप पेज देखें तो दे और वेरी सोफिस्टिकेटेड थीम होती है उनके पास, और वो क्या कहते हैं प्रॉपरली लेके चलते हैं। So, ये तो अगर आप देखें तो इन्होंने अपनी ब्रांड्स के लिए कौन से कलर चूज किए हुए हैं, इन्होंने अपनी ब्रांड के लिए लाइट कलर चूज किए हुए हैं। लुक हाउ द पिंक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन, and we have warm colors and cool colors as well. They choose to go for cool colors. तो इस तरीके से हमारे पास जो होती है, अब जहाँ पे भी आप इस तरह के कलर्स और थीम देखेंगे आपको किसकी वाइब्स आएंगी, आपको अपकॉन की वाइब्स आएंगी। इसी तरह अगर आप मैकडोनल्ड्स वगैरह की वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे भी उनकी डिफरेंट थीम्स होती हैं, और जब आप उस तरह की वो देखते हो तो आपको किसकी वाइब्स आती हैं, आपको फिर उस ब्रांड की वाइब्स आती हैं। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, हम अपने आप को लोगों को रिमेम्बर करवाते हैं कि लोग हमें याद रखें और फिर वो हमसे बाय करें। सो here we are। फिर हमारे पास लोगो जो होते हैं सिंबल बेस्ड भी होते हैं, सिंबल्स बहुत सारी चीजों के होते हैं। ओके लेट्स सी वन सिंबल बेस्ड लोगो ताकि आपको आइडिया हो जाए। here स्टारबक्स का सिंबल, ट्विटर का सिंबल, एंड ये सिंबल बेस्ड लोगो कहलाते हैं कि हमने जो पिक्चर्स जो हैं उनकी बना ली। मैकडोनल्ड्स का सिंबल, आप कहीं पे भी ऐसा बना हुआ देखोगे आपको किसकी वाइब आएगी, आपको मैकडोनल्ड्स की वाइब आएगी। जैगवार का सिंबल, ये फेवरेट सिंबल है मेरा, कि ये जैगवार इज अ ब्रांडेड कार कंपनी। तो ये इनका सिंबल है। गूगल क्रोम का सिंबल देख रहे हैं जो हम यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, विंडोज का, तो ये कुछ सिंबल बेस्ड ड्राइंग्स भी होती हैं, लोगो भी होते हैं। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली कुछ चीजों की। अब ट्विटर है, वो सिंबल किस तरह से हुआ, उस पे एक बर्ड बनी हुई है, और पहले जमाने में क्या होता था, कबूतर लोगों की खत लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि जो है आपने लोगो में अपने बर्ड बना दिया और बर्ड उड़ रहा है, इसका मतलब कि वो मैसेज कन्वे कर रहा है। ट्विटर बेसिकली अनाउंसमेंट के लिए यूज होता है कि अगर कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है, कोई कंपनी अपनी अनाउंसमेंट कर रही है, तो वो सिंबल को हम आइकॉन्स भी कह सकते हैं। आइकॉन्स बेसिकली यार डेस्कटॉप के लिए यूज कर सकते हैं, और हाँ इन टर्म्स इसे आइकन भी कह सकते हैं, लेकिन लोगो में जब आ जाता है तो फिर हम इसे आइकॉन नहीं कहते, क्योंकि आइकॉन बहुत तरह के होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो लोगो टाइप्स डिपेंड करती है कि आपका क्लाइंट या आपका बिजनेस आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है। कॉर्पोरेट साइड के लोगो अलग होते हैं, फूड साइड के अलग होते हैं, कोई क्रिएटिव कंपनी है, कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, उनके लोगो अलग होते हैं। तो इट डिपेंड्स। सही है, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन था एक, कि हम लोग
ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या सीखते हैं या हमें क्या क्या सीखना चाहिए, तो इट इज बेसिकली जो सॉफ्टवेयर आते हैं, अडोब इलस्ट्रेटर को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी। ये जो है वेक्टर डिजाइन होता है। वेक्टर डिजाइन बेसिकली क्या होता है कि आप पेन टूल से इसे क्रिएट करते हो, खुद ड्रॉ करते हो इसे। ये ड्राइंग प्रोग्राम में होता है। इसको हम पोस्टर्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, आइकॉन्स बनाने के लिए यूज करते हैं, कोई पैटर्न हो, लोगो हो, सिंबल्स हो, वो सब हम कहाँ क्रिएट करते हैं? इलस्ट्रेटर पे, क्योंकि ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अक्सर आपने कभी वो देखिए कैलीग्राफी कंप्यूटर बेस्ड जो होती है, तो वो भी एडोब इलस्ट्रेटर से होती है। आप अपना एडोब इलस्ट्रेटर पे फोटोग्राफी का लोगो भी बना सकते हो, जो जस्ट सिंपली योर नेम हो या सिंबल बेस्ड हो या सिर्फ टाइपोग्राफी हो। तो एडोब इलस्ट्रेटर को मतलब लर्न करने में कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट अ मंथ, क्योंकि इसके अंदर पूरी स्टोरी बोर्डिंग होती है। स्टोरी बोर्डिंग होती है। स्टोरी बोर्डिंग में आप सीन्स क्रिएट कर रहे होते हो, नाइट सीन, डे सीन। और अगर सपोज दैट कोई आप करेक्टर ले लो, मदीहा, नाउ एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके, तो मैं आपको बता रही थी एडोब इलस्ट्रेटर का कि इसमें हमारे पास स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है। सपोज करें आप, आपके पास जो है कोई यूट्यूब की कार्टून वीडियो है, सब और वो कार्टून वीडियो क्या है? टॉम एंड जेरी की है। उसके आपने 3 से 4 सीन का क्या किया? स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे? उस स्क्रीनशॉट को लेकर आओगे इलस्ट्रेटर पे, और इलस्ट्रेटर पे रखिए, जैसे हम ट्रेसिंग नहीं करते इस तरह से ट्रेस करोगे। जब आप उसे ट्रेस करोगे तो जाहिर सी बात है उसे वो बनना शुरू हो जाएगा। उसमें आपने डिफरेंट चीज, मतलब छोटी से छोटी चीज को आपने ट्रेस कर लिया। अब जो जो चीजें आपने ट्रेस की हैं उसको वहां से आप क्या कहते हैं, एक ब्लैंक आर्ट बोर्ड पे ले आओ। हम जो इनके इंटरफेस पे जहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, हम उनको आर्ट बोर्ड कह रहे होते हैं, ठीक है? तो जब आप उसे आर्ट बोर्ड पर लेकर आओगे, तो वहां पे आप उसमें फिर कलर फिल करोगे अकॉर्डिंग टू द सीन जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है? जब वो उसमें फिल करोगे तो वो एग्जैक्टली पूरा वैसा एक सीन क्रिएट हो जाएगा। तो यूजुअली आर्टिस्ट जो एनिमेशन करते हैं, एनिमेशन चलाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले विजुअली एक स्टोरी बोर्ड बनवा लेते हैं कि हमारी स्टोरी ये है कि एक बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल रास्ते में उसको चोट लग जाएगी, फिर क्या कहते हैं वो घर आएगा, दवाई लगाएगा, और क्या कहते हैं, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं होगा, तो ये जर्म्स का मसला होगा। तो इस तरीके से अब उन्होंने ये सारी स्टोरी आपको बता दी। अब वो क्या बोलेंगे आपको कि आप हमें स्टोरी बोर्ड बना के दो, जिसमें 8 आर्ट बोर्ड होने चाहिए, जिसमें एक सीन में बच्चा ये करता हुआ नजर आए, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, तो वो ये करता हुआ नजर आए। तो वो स्टोरी बोर्ड फिर आप बना के उनको दे दोगे। मैं आपको स्टोरी बोर्ड्स भी दिखा देती हूँ, it will be helpful for you. स्टोरी बोर्डिंग जो होगी यहाँ पर, ये हम उसमें करते हैं। ये देखें, ये पूरा इंटरफेस आ गया आपका। आपने सपोज दैट ये सीन लिया है, अब आप इसकी एक एक चीज को पेन टूल से ट्रेस करोगे। जब आप ट्रेस कर लोगे तो क्या कहते हैं, आप उसे आर्ट बोर्ड पर लेकर आओगे अपने, और वहां यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से कलर्स लोगे, कलर्स लेके वहां पे फिल करोगे, तो आपका पूरा सीन क्रिएट हो जाएगा। जब आप ऐसे आर्ट बोर्ड की प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे देखो इन्होंने एक सीन क्रिएट किया हुआ है जिसमें कि ये बच्ची है, यहाँ पानी है, परिंदे उड़ रहे हैं, ये बादशाही मॉस्क है, ये बच्ची सो रही है। तो इस तरीके से इन्होंने ये पूरा स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया हुआ है, उसमें 3 इमेजेस हैं। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ ये सीन होगा, ये कहेगी, और बाद में इसे एनिमेटिंग आर्टिस्ट एनिमेट कर देते हैं। सही है। अब जो है हमारे पास इलस्ट्रेटर की बात कर ली। इलस्ट्रेटर में हमारे पास, मैं वेक्टर आर्ट्स भी आपको दिखा देती हूँ। वेक्टर आर्ट्स आर द बेस्ट थिंग अबाउट इलस्ट्रेटर।
ये these are the vector arts के जो लोग अपनी पिक्चर कार्टूनाइज करते हैं तो ये वेक्टर आर्ट्स होती हैं. इट कैन बी रियलिस्टिक लैंडस्केप्स, और ये जस्ट किसी पर्सन की पिक्चर नहीं हो सकती, किसी लोगों की पिक्चर हो सकती है, किसी और चीज की पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई बहुत क्रिएटिव जिस तरीके से ये है इलस्ट्रेटर आर्ट. तो ये होती है वेक्टर आर्ट एंड ये हम पेन टूल से करते हैं एंड इट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इलस्ट्रेटर. स्टोरी बोर्डिंग थोड़ी लेंदी होती है तो उसमें भी पोटेंशियल इनकम बहुत बहुत ज्यादा है उसमें, लेकिन वो लेंदी बहुत होती है, इंसान बहुत जल्दी उससे वो हो जाता है, ता जाता है. तो इट इज जस्ट अ सिंगल पिक्चर, आप इसे क्रिएट करके इजीली इससे आप 2 से 3 हजार रुपए कमा सकते हो एक पिक्चर के. ओके सो हमारे पास इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर हो गया, उसकी कुछ बेस्ट ट्रेड्स हमने देख ली है. फिर अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ. कोरल ड्रॉ ज्यादातर प्रिंटिंग फर्म्स में यूज होता है. ये प्रोफेशनली आप इसमें बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हो. बिजनेस कार्ड आप इलस्ट्रेटर में भी डिजाइन कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनली लोग कोरल ड्रॉ में ही करते हैं. बिजनेस कार्ड, लेटर हेड्स, मग, टी शर्ट्स वगैरह, ये सब काम आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनली कोरल ड्रॉ में ही किए जाते हैं. तो कोरल ड्रॉ का अगर मैं आपको दिखा दूं कि किसी चीज पे अपना लोगो लगाना, तो कोरल ड्रॉ में भी हमारे पास ये आर्टिस्टिक इफेक्ट होते हैं, लेकिन लोग इलस्ट्रेटर को ज्यादा प्रेफर करते हैं इसलिए क्योंकि उसके ऑप्शन ज्यादा इजी होते हैं. लेटर हेड डिजाइन ज्यादातर लोग कोरल ड्रॉ इस चीज के लिए यूज करते हैं. बिजनेस कार्ड डिजाइन के, विजिटिंग कार्ड के लिए यूज कर सकते हैं, फॉन्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये जो है प्रोफेशनली कोरल ड्रॉ इसलिए यूज किया जाता है. यहाँ पे आप इफेक्ट्स देख लो कलर के, ये क्रिएट कर सकते हो. ये कार्ड का डिजाइन ये आप कोरल ड्रॉ पे क्रिएट कर सकते हो. कोरल ड्रॉ पे भी पेन टूल मौजूद होता है, लेकिन ज्यादा इजी मुझे जो यूज करने में लगता है वो इलस्ट्रेटर का पेन टूल लगता है. तो वैसे प्रोफेशनल्स कोरल ड्रॉ यूज करते हैं विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, पोस्टर, स्टैंडी वगैरह के लिए. बट वही कि आप कौन से यूजर इंटरफेस से ज्यादा सेटिस्फाई होते हो तो फिर आप वहाँ पे जाते हो. फिर जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इसमें एडोब फोटोशॉप है, और फोटोशॉप का तो आपको पता है कि पोटेंशियल कितना है. डुअल मीनिंग देती है पिक्चर. राइटिंग में कोई एनिमल बना होता है. निदा काइंडली स्पेसिफाई योर क्वेश्चन. बहुत सारी राइटिंग्स हैं जिनमें एनिमल हो सकता है और पिक्चर्स बेस्ड भी हो सकता है. मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो आप ये मुझे किसी और तरीके से अगर कर सकें तो इट विल बी गुड. तब तक मैं फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर डिजाइन बता देती हूँ आपको. ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है. बेसिकली इसे फोटो रीटच करने के लिए यूज करते हैं. इसका बेसिक यूज ये है, लेकिन यहाँ पे आप पोस्टर डिजाइन भी कर सकते हो, लोगो भी बना सकते हो. मैं आपको इसका दिखाती हूँ, फोटोशॉप का रीटच. इसमें आप एनिमेशन भी कर सकते हो. बिफोर एंड आफ्टर मैं इसकी रीटचिंग दिखाती हूँ. बहुत सारी ब्रांड्स ये रीटचिंग के लिए यूज करती हैं. ये देखो, ये आपकी पिक्चर थी ओरिजिनल, और फिर आपने इसे रीटच किया तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस. फिर ये आपकी ओरिजिनल पिक्चर थी, आपने रीटच किया, ये इसमें कन्वर्ट हो गई. ये ओरिजिनल पिक्चर. इसमें आप लाइटनिंग भी इम्प्रूव कर सकते हो. आप जो भी इफेक्ट्स हैं आप ब्राइट भी कर सकते हो, मतलब हाईलाइट कर सकते हो, कोई डार्क कर सकते हो. वो राइटिंग ऐसी होती है, या ये भी कैलीग्राफी होती है, वो डिफरेंट के वो प्रोफेशनल्स करते हैं. ठीक है, राइटिंग में डियर की पिक बन जाना ये प्रोफेशनल कैलीग्राफी में आता है, ये यहाँ पे नहीं आता है. यहाँ बेसिक थोड़ी बहुत कंप्यूटर बेस्ड कैलीग्राफी होती है. ठीक है. अच्छा, ये रीटचिंग होती है फोटोशॉप से. अब देख इसकी स्किन और इसकी स्किन लाइट, तो ये सब कहाँ से होता है? ये फोटोशॉप में हम रीटच करते हैं. कोई भी पिक्चर, सेलिब्रिटीज अपनी पिक्चर यहाँ पे रीटच करवाते हैं, और सबसे कहते नहीं है कि पिक्चर्स वायरल कर देंगे, ब्लैकमेल करने के लिए लोग यूज करते हैं. My screen is not sharing.
एक मिनट। ओके, तो जो है हमारे पास ये आर्टिस्ट जो हैं, एक मिनट में यहाँ से लेफ्ट हो गई हूँ। तो मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। मीनवाइल रीटचिंग का आपको आइडिया हो गया, आप रीटचिंग खुद भी सर्च कर सकते हो। तो ये हम सिर्फ क्या कहते हैं, इस फोटोग्राफी में नहीं करते, हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। हम सिर्फ मॉडल्स की पिक्चर्स में नहीं करते, हम जो है अपनी जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है उसमें भी करते हैं। और क्यों आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज की पिक्चर अच्छी आती है, वो भी हमारी तरह इंसान है, कभी कभी वो भी ऑर्डिनरी कैमरा से ले रहे होते हैं, अक्सर डीएसएलआर से ले रहे होते हैं। लेकिन डीएसएलआर से लेने में पिक्चर जो है वो ज्यादा कैसी आती है, प्रॉपर आती है। सो आई होप नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप डीएसएलआर से लेते हो, आपके जो है सारे फिल्टर्स नहीं होते, आपके बिना फिल्टर्स के होते, तो वो एक एक स्मॉल से स्मॉल पिक्सल्स को कैप्चर करता है। ठीक है, वो जब एक एक पिक्सल्स को कैप्चर करता है, आपकी फिर क्या कहते हैं, थोड़ी नेचुरली आती है। तो फिर आप उसको डीटच करते हो कहाँ पे, फोटोशॉप में। आप इसी तरह अगर आपकी कोई ओल्ड फोटोज हैं, उन पर साइंस वगैरह आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, उनको ताकि कि भाई मेरी यादें हैं, मुझे क्लीन करनी, आप वो भी कर सकते हो। फोटोशॉप के मल्टीपल हैं, फोटोशॉप में आप पिक्चर कटिंग भी कर सकते हो। जैसे कोई तो ब्रांड की पिक्चर, तो पिक्चर कटिंग भी आप करते हो। अब किस तरह मैं पिक्चर कटिंग की एग्जांपल दूं आपको, जैसे ये है, इसका फेस यहाँ था, आपने इसको कट किया और ये फॉरवर्ड कर दिया। आप इस तरह बहुत सारे इफेक्ट दे सकते हो। कोई चीज बैकग्राउंड में, सपोज दैट के कोई पिक्चर आपकी खराब आ गई है, ऐसी आ गई है, उसमें से आपने कुछ रिमूव करना है कि यहाँ पे सपोज दैट ये ह्यूमन था, इसका हेड था, ये हमें नहीं चाहिए था। तो अगर सब ऊपर से भी नजर आ रहा होता है, साइड से भी नजर आ रहा होता है, तो आप ये इजीली कट कर सकते हो बाय यूजिंग फोटोशॉप। फोटोशॉप में भी आप पोस्टर्स भी डिजाइन कर सकते हो। हमारे सर बताते थे कि फोटोशॉप में जो है कुछ लोग अपने क्या करते हैं, अपनी मार्कशीट्स के नंबर से ही करवाते थे। एक बंदा था, वो करके देता था उनको पैसे लेके, और फेल होते थे स्टूडेंट पास करवा देता था कि घर में जाके वो दिखाएं कि भाई हम लोग पास हो गए। ओके, तो फोटोशॉप इज अबाउट दिस। फोटोशॉप के बहुत सारे ऑप्शन है। फोटोशॉप इज द वर्ल्ड इन इटसेल्फ, कि आप वहां से बहुत मल्टीपल चीजें सीख सकते हो। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट ऐप है ये लाइट रूम। ये सिर्फ पिक्चर एडिटिंग की ऐप है, लेकिन अगर आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो तो इसमें कैमरा के भी ऑप्शन। मैं आपको लाइट रूम की अगर एडिटिंग दिखाऊं, तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स लाइट रूम की लाइट रूम को यूज करते हुए अपनी पिक्चर्स मॉडिफाई करते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह। ये सिर्फ पिक्चर बेस्ड ऐप है। हेयर, तो यहाँ पे आप बेसिकली देखते हो कुछ लोगों के पास डीएसएलआर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा हसीन पिक्चर्स ले रहे होते हैं। तो कैसे, ये जो है लाइट रूम की ऐप है, इसमें कैमरा के ऑप्शन है, इसमें वही सारे ऑप्शंस हैं जो डीएसएलआर में। तो आप यहाँ से अपना आईएसओ सेट करो, और ये फंक्शंस आप सारे सेट करो। उसके बाद अगर आप मूव भी कर रहे होगे ना, तो आपके इर्द गिर्द वाली जगह मूविंग आएगी और आपकी पिक्चर स्टिल आएगी। तो मैंने खुद लाइट रूम को यूज करके अपनी काफी सारी शादी की पिक्चर्स एडिट की थी, एंड इट लुक डिफरेंट। तो आप फोटोशॉप पे भी कर सकते हो ये, और लाइट रूम पे भी कर सकते हो। लेकिन लाइट रूम इज ये मेड फॉर पिक्चर एडिटिंग ना। फोटोशॉप पे भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऑफिशियल ऐप क्या है, लाइट रूम है इसकी। तो फोटोशॉप पे रीटचिंग बहुत बहुत बेहतरीन होती है।
तो रीटचिंग के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगी फोटोशॉप। बाकी फोटोशॉप के बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप अपनी मार्कशीट तक एडिट कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स के हाउ मच यू वांना लर्न, जितना आप लर्न करना चाहोगे आपको उतना ही मिलता है। फिर जो है आपके पास एडोब इनडिजाइन है। एडोब इनडिजाइन बेसिकली क्या है, ये स्टैंडर्ड पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। कोई बुक आपने देखी है जब भी वो पब्लिश होती है, मैं आपको इनडिजाइन का इंटरफेस अगर दिखाऊं तो इट लुक लाइक दिस। तो इस तरह का इसका इंटरफेस है एडोब इनडिजाइन का। और इसके अंदर आप जो है अपनी बुक्स, ये देखो बुक्स में हमारे पास 2 साइड्स आ रही होती है ना, कि एक ये वाली साइड है पेज टर्न होगा, एक ये वाली साइड है, तो हमें ये चाहिए। और ये इसका पूरा आर्ट बोर्ड है, ये इसका इंटरफेस है कि हमें कोई बुक या हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो इस तरीके से वो हम इस पर पहले लेके जाते हैं, यहाँ से फिर उसका पीडीएफ बनाते हैं। आप डायरेक्ट वहां से भी बना सकते हो, लेकिन प्रोफेशनली लोग यहाँ से बना के फिर पोस्ट करते हैं। तो इस बुक्स के लिए ये यूज होता है। और इसकी पूरी पूरी जॉब्स मौजूद हैं। अगर आप जाओ तो स्टोरी बोर्डिंग की, सिर्फ स्टोरी बोर्डिंग की पूरी जॉब्स हैं, जिनमें सैलरी का पोटेंशियल 30 to 40,000 है। ऐसी इन डिजाइन में भी जैसे आप बुक प्रिंटिंग प्रेस में चले जाओ तो इसकी भी पूरी जॉब्स मौजूद हैं, और इनका भी पोटेंशियल 30 to 35,000 है सिर्फ इन डिजाइन का। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ये बेसिक 5 सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कोई सवाल किया है। लाइट रूम इज फ्री, इट इज टोटली फ्री। और बाकी ये है कि जिस तरह फोटोशॉप है उसी तरह मैम कैन वी डू दीज थिंग्स बाय मोबाइल फोन। देखिए अब इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप का हो गया, तो ये आप मोबाइल पे कर सकते हो, लेकिन काफी हद तक इंटरफेस वो वाले ऑप्शन नहीं दे रहा होता जो लैपटॉप पर होते हैं, लेकिन मोबाइल से भी आप कर सकते हो। लाइट रूम मोबाइल में बहुत इजीली आप यूज कर सकते हो। और इन डिजाइन तो खैर इतना होता ही नहीं है, वो तो है ही लैपटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर। और लाइट रूम इज फ्री, आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी iOS पे कर लो, उस पे कर लो, गूगल प्ले से कर लो, एंड्रॉइड पर, तो इट इज फ्री। और इसके बहुत अच्छे प्रीसेट्स हैं। अगर आपको इससे खेलना आ जाए यू कैन बिकम अ फोटोग्राफर, कि आप एक सिंगल पूल की पिक्चर लेके उसको इस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हो कि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर लगोगे। उर्दू टेक्स्ट के लिए एक अलग ऐप होती है विच इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसका नाम अलग है, उर्दू टाइपिंग वही होती है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये जो ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर है वहां पे हमारे पास नहीं होती टाइप। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट अडोब ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर विद क्रैक, सीडीज में मिल जाएंगे, और सर्टेन आपकी होस्टिंग सर्वर वेबसाइट होती है वो देते हैं। इन पेज, या सही बताया आपने, इन पेज इज उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन मसला ये हो जाता है कि इन पेज में अगर आप इन पेज में टाइप करो और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेकर आओ तो वो कॉपी पेस्ट नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से उसमें लेके जाओ तो इन पेज पे ही अगर आपने काम करना है तो पूरा काम करो। मैं यूजुअली अगर इन पेज इंस्टॉल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे उर्दू टाइपिंग करके यहाँ पर ले आती हूँ। प्रीसेट्स क्या होते हैं कि आपकी हेल्प करने के लिए कुछ बेसिक शेप्स कलर्स वगैरह दिए हुए होते हैं। ये जो सारे आइकन साइड में दिए हुए होते हैं हेल्प करने के लिए, दोज आर बेसिकली प्रीसेट्स, कि आपने इसे चेंज करना है, इसे ज्यादा करना है, बढ़ाना है, कम करना है। ठीक है, फोनेटिक कीबोर्ड ये तो फिर वो लैंग्वेज बेस्ड हो जाता है। और क्रैक सॉफ्टवेयर आपको सीडी में मिल जाएंगे और उसमें भी मिलेंगे। हमें जहाँ ऑर्गेनाइजेशन से हमने किया था तो उन्होंने हमें क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिए थे। क्रैक सॉफ्टवेयर तो नहीं, आई गेस बॉट थे, क्योंकि हमारे पास कभी क्रैकिंग का आया नहीं। तो these 5 softwares you will get to learn in graphic designing course from wherever you do. ओके फिर हमारे पास जो चीज है ग्राफिक डिजाइन में, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में क्या फर्क है। जो बेसिक मतलब जो मेन सॉफ्टवेयर है ना, कह लें आप कोर है जो इस कोर्स की, वो फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है। कुछ लोग फोटोशॉप प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इलस्ट्रेटर करते हैं। अब आप यहाँ देख लो कि यहाँ पे क्या है, एक मैन है, अगर वो फोटोशॉप में आए तो फोटोशॉप में आपने क्या किया, उसको रीटच करके उसकी इमेज को एक इनहेंस प्रोफेशनल लुक दे दिया। वहीं आपने इलस्ट्रेटर में क्या किया है, उसको आर्ट में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको ड्रॉ किया है,
कि हेयर इज आईज नोज और इस तरह इसका कलर है, तूने तो एक कार्टूनिक फॉर्म में आपने उसे क्रिएट कर दिया। वी कैन डू दीज ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब्स। यस, ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ फ्रीलांसिंग स्किल। यस यस मदीहा, इट इज पॉसिबल। ये फ्रीलांसिंग स्किल ही है। इसकी ऑफिस बेस्ड जॉब भी अब तो बहुत ज्यादा लॉन्च हो गई है, लेकिन आप इसकी फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो ऑनलाइन। देखें, ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपके पास 6 प्लेटफॉर्म्स होते हैं। 6 प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। फेसबुक ग्रुप्स बने हुए होते हैं। आप जाओ, रिलेटेड ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड सर्च करो, मल्टीपल ग्रुप्स आएंगे। तो वहां पे आप जो है पोस्ट करो कि दिस इज माय पोर्टफोलियो, या अगर किसी ने कोई क्वेरी पोस्ट की है कि मुझे यहाँ पे ये क्वेरी आ रही है कि इलस्ट्रेटर में मैं यहाँ इसे कैसे कन्वर्ट करूँ, अगर आपको उसका आंसर पता है तो डू आंसर इन द कमेंट। आप जब कमेंट में आंसर करोगे ना, तो सिर्फ वहीं तक आपका आंसर, आपकी नॉलेज नहीं पहुंचेगी उस बंदे तक, बल्कि उस ग्रुप में मौजूद बहुत सारे लोग, सारे लोगों तक नहीं तो कम से कम 1% ऑफ द ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। तो वहीं आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स मौजूद होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि आप एक्टिव हो, आप एक्टिवली भी वर्क कर रहे हो, आपको बहुत सारी क्यूरीज का पता है, तो फिर खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं कि यार मुझे ये पोस्ट डिजाइन करवानी है और इस तरीके से। तो बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनली डील करो उनको। और सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि क्या है आपका अर्निंग पोटेंशियल। फेसबुक ग्रुप्स, बहुत क्लाइंट्स मिलेंगे आपको फेसबुक ग्रुप से, बहुत ज्यादा। लेकिन ये है कि आपने एक्टिव रहना है और क्यूरीज पे कमेंट करना है, पोस्ट करनी है, या आपकी अपनी कोई क्यूरी है तो वो पोस्ट कर दो कि हाँ मैंने पूरी पोस्ट तैयार कर ली, बस यहाँ पे मुझे ये ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। तो आप, कुछ लोग प्रेफर करते हैं फोटोशॉप को, कुछ लोग प्रेफर करते हैं इलस्ट्रेटर को, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों अपने अंदर पूरी की पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग समेटे हुए हैं। आप जो चीज इलस्ट्रेटर पे कर सकते हो वही फोटोशॉप पे कर सकते हो, एक्सेप्ट इलस्ट्रेटर इस वजह से अभी तक इन है कि उसके पास पेन टूल का ऑप्शन है, और उसकी वेक्टर आर्ट पेन टूल बड़ा जबरदस्त चलता है। फोटोशॉप में ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है इतना बेसिक को लेके। तो यहाँ फोटो मैनिपुलेशन, कटिंग, एडिटिंग, रीटचिंग, कोई चीज बैकग्राउंड से रिमूव करनी है, कोई पिक्चर क्लियर करनी है, तो इस वजह से लेकिन फोटोशॉप इज ऑन द टॉप। और इसका इंटरफेस भी बहुत इजी है, बहुत जल्दी लोड हो जाता है, जबकि इलस्ट्रेटर थोड़ा तंग करता है। इस तरीके से हम जो है, अब अगर आप स्टोरी बोर्डिंग करना चाहते हो, स्क्रीन ब्लैक है बेटा, मेरे पास तो पूरी क्लियर आ रही है, देख लो आप। फोटोशॉप में पेन टूल, यार पेन टूल हर जगह मौजूद होता है आउटलाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, लेकिन पेन टूल इलस्ट्रेटर का ज्यादा मैटर करता है, ज्यादा जो है उसका वर्क है। और बाकी जहां तक मैंने काम किया है फोटोशॉप में, पेन टूल मुझे तो इतना नजर नहीं आया। जस्ट पिक्चर कटिंग के तौर पर उसकी जो है आर्ट्स हैं, तो वो इतना कर्व टूल के लिए, स्टोरी बोर्डिंग के लिए आई प्रेफर कि इलस्ट्रेटर इज द बेस्ट। बाकी फोटोशॉप बाकी चीजों के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ लोगों के लिए भी इलस्ट्रेटर मैं रिकमेंड करूंगी। बाकी अपना पोस्टर, अपनी फेसबुक पोस्ट, खासतौर पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी पोस्ट बहुत अच्छे कलर इफेक्ट्स देता है, बहुत जबरदस्त इसकी रिटचिंग है, तो वो सारी फोटोशॉप पे डिजाइन करो। बल्कि कैनवा की ऐप भी है, अगर आप अपनी क्या कहते हैं सोशल मीडिया के लिए डिजाइन करना चाहते हो तो आप कैनवा की ऐप से भी कर सकते हो। वहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक स्टोरी, बेसिक एनिमेशन। फोटोशॉप पे भी बेसिकली आपकी बिल्कुल बहुत बेसिक सी एनिमेशन होती है लोगों की, वो भी आप कर सकते हो। इलस्ट्रेटर में एनिमेशन का ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे पास वर्क करता है। अब हम अगर देखें इसका अर्निंग पोटेंशियल, कि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ और बिल्कुल आप फ्रेश हो, तो आप क्या अर्न कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप क्या अर्न कर सकते हो। यस, कैनवा आप मोबाइल पे यूज कर सकते हो, कैनवा की ऐप है, मेरे पास भी है मोबाइल पर। एंड सोशल मीडिया पोस्ट साइज बता दें मेन प्लेटफॉर्म्स के। देखिए, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ये याद करने की जरूरत तो नहीं होती।
और हमारे पास प्री सेट्स में आता है पोस्ट डायमेंशंस, ये रहे आपके पास कि अगर आपके पास प्रोफाइल फोटो लगानी है आपने इंस्टाग्राम पर तो उसका साइज होना चाहिए 320 बाय 320, लैंडस्केप अगर करना है 1080566 और पोर्ट्रेट 1080 मल्टीप्लाई बाय 1350। तो ये सारे सोशल मीडिया साइजेस ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं हमारे पास, हमें याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम टेम्पलेट्स वगैरह में जाएं तो वो ये आप सर्च कर लेना, सोशल मीडिया साइजेस बहुत सारे अवेलेबल हैं, हर ऐप के डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के मेंशन है, पिन इंटरेस्ट का अलग होगा, कोरा में जाओगे अलग होगा, तो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आउट देयर। अब आपने वर्क किस पर करना है तो उससे रिलेटेड आपने देखना होगा। अच्छा, कैनवा पर आप स्क्रैच से लोगो बना सकते हैं, अगेन दैट थिंग बिल्कुल बना सकते हो आप और अपनी वेबसाइट पे लॉन्च भी कर सकते हो। सेल करने के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि अगर क्लाइंट को पता चल गया कि यार इट इज मेड ऑन कैनवा, और अगर आप कैनवा बाय करके बनाते हो तो भी नहीं पता चलेगा, तो फिर आई रिकमेंड कि गो फॉर द पेड वर्जन, ताकि क्या कहते हैं आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों और आप एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सको। ठीक है, अब अर्निंग पोटेंशियल मैं आपको बताई थी कि आप बिल्कुल आपने ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर लिया, अब आपको इसका वर्क ढूंढना है, या चलो वर्क भी आपको मिल गया लेकिन आपको क्या पता होगा कि आपने कितनी डिमांड करनी है, कितना आस्क करना है। तो फिर डिमांड जो होती है वो आपकी एक्सपीरियंस के बेस्ड पर होती है। जो न्यूबीज होती है वो पहले तो आप अपना पोर्टफोलियो एक रेडी रखो, जब आपका कोर्स खत्म होगा आपके पास एक पोर्टफोलियो मौजूद होगा, आप पोर्टफोलियो शेयर करो और बोलो कि आई एम न्यू बी, आई एम अ फ्रेशर, तो ये मेरे रेट्स हैं। आप जो है डायरेक्ट क्या कहते हैं स्टैंडर्ड रेट्स आप यूज करो, लेकिन डायरेक्ट मार्केट कॉम्पिटिटिव पर ना जाओ, तो आपके चांसेस इंप्रूव करेंगे टू गेट हायर्ड। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर आप जॉब ढूंढने जाते हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब स्टार्ट होती है 40,000 से। अगर आप ये 500 सॉफ्टवेयर उनको ऑफर कर रहे हो, अगर आप एक सिंगल सॉफ्टवेयर ऑफर कर रहे हो तो फिर क्या कहते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर और उसकी कौन सी एबिलिटीज ऑफर कर रहे हो। अब सपोज दैट आप इलस्ट्रेटर की स्टोरी बोर्डिंग ऑफर कर रहे हो तो बहुत लेंदी होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो इसमें आपका पोटेंशियल 45,000 50,000 तक होता है। इसी तरह ज़्यादातर अगर हम फ्रीलांसिंग को फोकस करें, क्योंकि एज अ गर्ल्स यूजुअली हम लोग ऑफिस जॉब्स इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, तो हम ज़्यादा यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं फ्रीलांसिंग को ही प्रमोट करना चाहूँगी कि आप क्या करो, आप अपनी प्रोफाइल बनाओ। मैंने आपको 6 उसका बताया था कि क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि कैनवास से बना है। देखिए भाई, क्लाइंट अगर किसी प्रोफेशनल वेबसाइट पर आ रहा है तो मतलब उसको कुछ ना कुछ तो पता है ना दुनिया के बारे में, तभी तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट पर आकर आपसे कह रहे हैं कि आप लोगो बना के दो। अगर क्या कहते हैं उसे नहीं पता होता कि कैनवा पे कैसे बनेगा, और कुछ बेसिक प्रोसेस ऐसे होते हैं जो इलस्ट्रेटर लुक जो होता है बता देता है कि यार ये कैनवा के हैं, या ये फॉन्ट्स मौजूद नहीं है, ये इलस्ट्रेटर के हैं, या ये फॉन्ट्स मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस पे क्या कहते हैं बहुत वो हो सकता है कि लोगो मेकर का लोगो भी पता चल जाता है कि ये जो है किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाया बल्कि लोगो मेकर से बना हुआ है। जब आप फील्ड में होते हो ना तो फिर आपको आइडिया हो जाता है, और सपोज दैट क्लाइंट को नहीं भी पता, उसने यकीन भी करके आपसे ले भी लिया, तो इन फ्यूचर क्या कहते हैं वो क्या करेगा, किसी और को दिखाएगा या अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करेगा, और उसको किसी ने बता दिया कि ये है, तो क्या होगा आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी वैल्यू कम होगी, या और इंटरनेशनल मार्केट में जब आप काम करते हो तो आपकी वैल्यू नहीं, फिर वो देखता है कि यार आप कौन से कंट्री से हो, तो जिस भी कंट्री से होते हो यार ये पाकिस्तानी ने बनाया था, आइंदा मैं किसी पाकिस्तानी क्लाइंट को हायर नहीं करूंगा। तो हमें जब हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और क्लाइंट को अगर ना भी पता चले वो बिल्कुल ही फ्रेश है, अभी अभी उसे ऑनलाइन वेबसाइट्स का पता चला है, तब भी उसे कोई और बता सकता है, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा हैं
कि वो जब भी पोस्ट करेगा, लोगो हम किस लिए बनवाते हैं? अपनी विजुअल प्रेजेंस को शो करने के लिए, अपनी कि हमारे पास ये वर्चुअल हमारा बिजनेस है, तो वहां पे तो दुनिया देखती है उसे। तो इसलिए इट शुड हैव टू बी इनोवेटेड आइडिया फ्रॉम योर ओन क्रिएटिविटी। तो मैंने सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपको बता दिया, फेसबुक ग्रुप्स, जहां पर आपको आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलेंगे और आप सब इजीली, आप सबके पास एक्सेस होगी फेसबुक ग्रुप्स की। लोगों के अलावा सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करके, यस, बहुत सारे लोग तो खुद ही कहते हैं कि हमें भाई कैनवा से आप डिजाइन करके दे दें, कैनवा पे टेम्पलेट है तो वो कैनवा आपको यूज करना आना चाहिए। तो ये एप्स, इनको भी निगलेक्ट ना किया करें, जो मोबाइल एप्स हैं इनका भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अक्सर पोस्ट में मेरे पास जो जॉब्स वगैरह आती है, काम आते हैं, तो वहाँ सोशल मीडिया में मेंशन होता है कि भाई हमें कोई प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर नहीं चाहिए, सिर्फ कैनवा से आप सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर दें, थोड़ी सी कंटेंट राइटिंग करके वो कर दें। तो यस, आप सोशल मीडिया पोस्ट बिल्कुल डिजाइन करके सेल कर सकते हो कैनवा पर। और दूसरी जो एप्स प्रेजेंट है, पिक्सआर्ट भी बहुत अच्छी ऐप है, तो उस पर भी कर सकते हो। तो सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो टेम्पररी होती है, उसके बाद वो बैकग्राउंड में चली जाती है, बट लोगो इज काइंड ऑफ थिंग जो परमानेंटली आपके हर जगह पर जा रहा होता है। और कवर फोटो, तो ये पोस्टर डिजाइन वगैरह, स्टैंडी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये बेसिक चीजों के लिए क्लाइंट भी आपको इतना बॉदर नहीं करेगा कि यार ये आपने यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से क्यों डिजाइन किया। वो खुद बल्कि आपको कैनवा के प्रीसेट भी सेंड कर सकता है कि भाई ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, इस पर डिजाइन करके आप डाला करो, ये मेरी जो है कलर थीम से मैच कर रहा है, कलर पैलेट से मैच कर रहा है मेरे, ठीक है। अब जो मेरा पहला प्लेटफॉर्म था वो फेसबुक ग्रुप्स था अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए। जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है। आज सबको लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए, बिकॉज लिंक्डइन पे जस्ट मेरी प्रोफाइल है, मैं इतनी ज्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ, लेकिन अब तक मुझे 3 से 4 जॉब्स की कॉल आ चुकी हैं लिंक्डइन से ही। तो मैंने रिफ्यूज कर दिया कि आई एम समवेयर एंगेज समवेयर एल्स, कि मैं कहीं और पे काम कर रही हूँ, तो मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती। तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और जॉब हंटिंग जो कर रहा है, फ्रीलांसिंग जो कर रहा है, बहुत बहुत बड़ी दुनिया है, और वो फेसबुक से बहुत, बल्कि बिल्कुल अपोजिट है। वहां पे जो है, आप जैसे फेसबुक पे आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है ना, वहां पे भी रिक्वेस्ट आती है, लेकिन वो फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होती, कनेक्शन रिक्वेस्ट होती है। और यहाँ जैसे फेसबुक पर हम जो है यार हम इसे नहीं जानते, ये लड़का है, हम एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी लिंक्डइन पर जिसकी भी रिक्वेस्ट आए, जिस कनेक्शन की रिक्वेस्ट आए, कोई भी आपको कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करे तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे। इससे क्या होता है, आपकी रीच बढ़ती है। जब भी आप कोई पोस्ट करोगे ना, वो मल्टीपल लोगों के पास जाएगी, या इवन मल्टीपल लोगों के पास ना भी जाए, अगर आपने कहीं पे कमेंट भी कर दिया है ना वहां पर, तो वो बहुत सारे लोग वहां से क्या कहते हैं, आपकी प्रोफाइल देख रहे होते हैं, उनमें कुछ जो है लोगों को हायर भी कर रहे होते हैं। अब जो हायरिंग हो रही है ना, वो ज्यादातर कहाँ होती है, फेसबुक पे भी होती है, बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन लिंक्डइन टोटली ही हायरिंग का प्लेटफॉर्म है। आइदर फ्रीलांसिंग, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, आर बेस्ड, किसी भी तरह का वर्क हो, लिंक्डइन इज अ वर्क बेस्ड वेबसाइट। अगर आप लोगों ने अर्निंग करनी है ऑनलाइन या फिजिकल, ये कैसे भी, तो मेक श्योर यू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल जिसमें आपका प्रॉपर बायो हो। मैं आपको लिंक्डइन दिखा देती हूँ, लिंक्डइन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि भाई आपके पास लिंक्डइन होना चाहिए। आई डोंट नो इफ यार आईडी पासवर्ड सेव नहीं। सो दिस इज लिंक्डइन। तो यहाँ पे जो है आपकी प्रोफाइल है, इसमें जो है आपने अपना, आपने कनेक्शन मेंशन करना है। ये अबाउट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपने बारे में मेंशन करना है कि आपने क्या क्या किया हुआ है, आप क्या क्या करते हो। और फिर आपने इसका अकाउंट बनाने का प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है। आपने मेंशन करना है आपने कहाँ वर्क किया, आपने कहाँ स्टडी की है, आपकी क्या क्या स्किल्स हैं,
आप उसमें आपका इंटरेस्ट क्या क्या है, बहुत लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन आपको यहाँ से ऑफर्स बहुत आती हैं। अगर मैं आपको ये होम दिखाऊं तो आपके पास मल्टीपल जो है जॉब्स अक्सर नजर आ रही होती हैं। अक्सर लोग पोस्ट करते हैं कि यार आई एम ग्रेजुएटेड, तो बेसिकली उनका मकसद ये नहीं होता कि वो ग्रेजुएट हो गए सबको बताएं। उनका मकसद ये होता है वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब। देखें, हायरिंग फॉर लाहौर ऑफिस, आई एम लुकिंग फॉर सीनियर गेम डेवलपर। तो ये सारी जो है हायरिंग हो रही होती है ना हमारे पास, और प्रोफेशनली काम हो रहा होता है, लिंक्डइन पर हो रहा होता है। आपको कनेक्शन की रिक्वेस्ट आती है कि आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आई होती हैं, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट को डिक्लाइन नहीं करते। आपको नहीं पता कि कौन सा बंदा आपको किसी और उससे, किसी फर्म से, किसी कंपनी से कनेक्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी सिर्फ वो ही नहीं आती है आपके पास जॉब्स वगैरह, बल्कि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आती हैं कि किस तरह आपने इंटरव्यू में सक्सेस करना है। और या कोई एचआर मैनेजर होता है वो बता देता है कि मेरे पास इतनी एप्लीकेशंस आती हैं और उनमें ये मिस्टेक होती है, तो फिर आप उसे देख के बोलते हो कि यार मैं भी यही मिस्टेक कर रहा हूँ, तो फिर आप वो मिस्टेक अवॉइड करने लग जाते हो। तो यहाँ पे सब अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और सब प्रोफेशनली होता है। ठीक है, तो दूसरा ये हमारे पास अर्निंग का प्लेटफॉर्म है। सही है। फिर जो है जो दूसरे मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगी फाइवर। ये हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। फाइवर हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। अगर हम बाइंग पर चले जाएं तो ये देखें, हम आते हैं ग्राफिक एंड डिजाइन। सॉरी, ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो आप इस पे देखेंगे वर्क पोटेंशियल कितना है। अब अगर इसको ही देख रहे हैं आप, आई विल डू डेटा एंट्री, तो सिर्फ डेटा एंट्री पे लोगों ने बनाए हुए हैं। डेटा एंट्री में क्या होता है कि वहां से वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपने उसे एक्सेल में एंटर करना होता है। अब यहाँ पे लोगो डिजाइन का एक अलग पूरा पोटेंशियल है। ब्रांड स्टाइल गाइड्स, कि आपके ब्रांड का स्टाइल कैसा होना चाहिए जो लोगों को आपकी ब्रांड की वाइब से, आपका कलर इसके। फिर गेम आर्ट, कि अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो गेम में भी आर्ट होती है, सीन्स होते हैं, तो वो स्टोरी बोर्डिंग वाला। ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो होती है उसके ग्राफिक्स कहाँ से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। बिजनेस कार्ड और स्टेशनरी पे अपना लोगो लगाना, उसका इलस्ट्रेशन, किसी ने आप कोई स्टोरी लिखी है, उस अपनी स्टोरी के लिए एक इमेज चाहिए, उसने कहा कि मेरे पास ना ये इमेज एक इस तरीके से मुझे इमेज चाहिए कि एक लड़की हो फ्रॉक पहन के खड़ी हुई हो, या एक बच्चा हो वो खेल रहा हो, तो वो इलस्ट्रेट करके दोगे आप कहाँ पर, इलस्ट्रेटर पर। फिर पैटर्न डिजाइन, अब यहाँ इन्होंने फ्लावर पैटर्न किया हुआ है, आप पिज्जा पैटर्न कर सकते हो। आप पैकेजिंग डिजाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैकेज हर किसी के पास होते हैं कि आपके ब्रांड्स के पैकेज होते हैं, आपके जो है परफ्यूम्स के ऊपर बॉटल्स पे लिखा हुआ होता है, पैकेज डब्बे होते हैं। अगर आप पिज्जा मंगवाओ और उनके डब्बों पर देखो तो उनका पूरा ब्रांड की आइडेंटिटी बनी हुई होती है। ब्रोशर डिजाइन, ट्राईफोल्ड होते हैं, बाईफोल्ड होते हैं, मतलब 3 पेजेस के होते हैं, 2 पेजेस के होते हैं। तो अक्सर आप बांटते हुए भी नजर आ रहे होंगे, जुम्मे की नमाज के बाद अक्सर बंटते हैं, लेकिन वो ये वाले नहीं होते, वो थोड़े से कम बजट वाले होते हैं। फिर पोस्टर डिजाइन, कि आपका पोस्टर है फेसबुक पे, पोस्टर है आपका किसी वॉल के लिए, पोस्टर है। साइनेज डिजाइन, ये बिलबोर्ड डिजाइन, आपका आपका फ्लायर, कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या वर्क है, क्या बेनिफिट है। ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइन की फील्ड चल रही है। ये बुक डिजाइन, मैंने इन डिजाइन का बताया था कि इन डिजाइन में हमारे पास क्या होता है, बुक डिजाइन होता है। एल्बम कवर डिजाइन, कवर कोई भी सॉन्ग आ रहा होता है उसका एक एल्बम बनता है, एक कवर पिक्चर होती है। यूट्यूब पे अगर आप देख लो मोस्टली वीडियोस पे पिक्चर आ रही होती है, तो वो भी कहाँ से होती है, वो भी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर से होती है। फिर पॉडकास्ट, पॉडकास्ट क्या होते हैं बेसिकली, जैसे पहले रेडियो चलता था, अब तो रेडियो खत्म हो गया। लोग क्या करते हैं, अब ऑडियो अपनी किसी से किसी फेमस पर्सनालिटी से बात करते हुए या कोई बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक को डिस्कस करते हुए अपनी ऑडियो बना के पोस्ट करते हैं। तो उसके लिए भी आपको अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए लोगो या कोई पिक्चर या कोई आर्ट वर्क चाहिए होता है। फिर वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन में आप यूजर इंटरफेस एडोब फोटोशॉप में डिजाइन करते हो कि भाई यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट, इसका इजी एक्सेस यहाँ मौजूद है। फिर बाद में आप उसकी कोडिंग करवाते हो, पहले आप उसका यूजर इंटरफेस डिजाइन करवाते हो। यूजर इंटरफेस में अगर आपको दिखाऊं तो UI UX design. So here it is.
तो इसकी भी बहुत डिमांड है। सिर्फ यूजर इंटरफेस की आपको एक एक ही प्रोजेक्ट की आराम से 5,000 तक मिल सकते हैं अगर आप इसमें एक्सेल कर लो। लेकिन वही पहले हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मैं सिर्फ यूआई को सर्च कर लेती हूँ यहाँ पे, ये पूरा वो दे रहा है आपको। किसी ऐप का यूजर इंटरफेस बनाना, मैंने अपने पोर्टफोलियो के लिए एक शूज की ऐप का बनाया था यूजर इंटरफेस, जिसमें ये देखिए ऐप का कि ये फाइल मैनेजर है, इसमें इतनी स्पेस बाकी है, इतनी चीजें आपने इतनी एप्स इंस्टॉल की हुई है, इतने लोगों से आपने इतनी फाइल्स शेयर की हुई है। तो ये क्या है, इंटरफेस है कि भाई वेबसाइट बनेगी तो ये कलर होंगे, ये पिक्चर्स यहाँ यहाँ होंगी और इजीली एक्सेस कर सकते हैं लोग। तो इसे कहते हैं यूजर इंटरफेस। वेबसाइट्स के भी होते हैं और ये एप्स के भी होते हैं। ठीक है, तो ये पहले डिजाइन करवाए जाते हैं, उसके बाद इनकी कोडिंग करवाई जाती है, तो इसका भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। फिर हमारे पास जो चीज आती है वो ये है कि मैंने क्या डिस्कस किया था अभी, हाँ अर्निंग पोटेंशियल डिस्कस करें। कैन वी शेयर आवर राइट अप्स एंड आवर पब्लिश आर्टिकल? यस भाई, आप ना फाइवर पे भी अगर गिग बना रहे हो तो वहां से भी आप शेयर करो कि भाई ये मेरी गिग है, आई एम अ प्रोफेशनल राइटर और आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो। आप यहाँ पे सिर्फ जो है प्रोफेशनल वर्क शेयर करते हो, ठीक है। आपने अभी अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग का सपोज सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया या ग्राफिक डिजाइन के आपने वर्कशॉप लिया, आप पोस्ट कर दो कि आई हैव सक्सेसफुली टेकन दिस वर्कशॉप ऑन अपकॉन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, और इस तरीके से लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आपने फ्री वर्कशॉप लिया, आपको आइडिया है व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। अभी आपने ग्राफिक डिजाइन का सर्टिफिकेट ले लिया तो आप ये भी पोस्ट करो कि भाई आई एम अ सर्टिफाइड ग्राफिक डिजाइनर नाउ, और इस तरीके से आप कहीं पे भी वहां मेंशन नहीं करोगे ये कि भाई मुझे वर्क चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर वर्क। आप सिर्फ ये बताओगे कि आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर और सर्टिफाइड ग्राफिक डिजाइनर। आपके पास वर्क खुद ही मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होकर आएगा जब उनको पता चलेगा कि यू आर सर्टिफाइड, और वहीं पे आप अपने पोर्टफोलियो का लिंक भी शेयर कर दो तो इट विल बी यू नो चेरी ऑन द केक। तो इस तरह से होता है ये। अब मैंने आपको कितने प्लेटफॉर्म्स बता दिए? मैंने आपको 2 प्लेटफॉर्म्स बता दिए। फाइवर, फाइवर नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, हम उसको डिस्कस कर रहे थे, उसको लेके हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ओके, तो फाइवर का पोटेंशियल, यूएक्स डिजाइन, ऐप डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, ये सिर्फ इंटरफेस डिजाइन बना के दे रहे हो, आप वेबसाइट नहीं बना के दे रहे, सिर्फ डिजाइन। सोशल मीडिया डिजाइन के हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे तो हमारी पोस्ट का कॉर्नर यहाँ से वाइट आना चाहिए, ये ऐसी पोस्ट होनी चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड ये होना चाहिए। लैंडिंग पेज डिजाइन, क्या आपकी वेबसाइट का जो लैंडिंग फर्स्ट पेज होगा जो खुलेगा वो क्या होगा। ईमेल डिजाइन के, अक्सर आपने ईमेल देखी होंगी, उसके अंदर जो है पोस्टर्स या पिक्चर्स और नीचे सिग्नेचर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो डिजाइन। तो आप लोग ये डिजाइनिंग वगैरह अपने बेसिस पे भी सर्च करो, देखो कि इसमें क्या है क्या नहीं है, किस में आपको इंटरेस्ट है, किस में आप अपना पोटेंशियल बना सकते हो। आइकॉन आप क्रिएट कर सकते हो, फिल्टर्स हम बनाते हैं स्नैपचैट पे, उस पर डिफरेंट कौन कौन सी कैमराज हैं उन पर, तो ये सब ठीक है। इनविटेशन, वेडिंग कार्ड इनविटेशन हो गया, पार्टी इनविटेशन, बर्थडे इनविटेशन, कोई पोर्ट्रेट, मैंने अभी आपको दिखाया पोर्ट्रेट कैसे बनते हैं, कोई एनाइम बनानी, कॉमिक्स बनानी, कार्टून बनाने हैं, वो सब आप यहाँ डिजाइन कर सकते हो। जी, ये सब चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में सिखाते हैं, बिल्कुल ये सब चीजें सीखते हैं आप ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में, इसीलिए उसे ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं कि अगर आप एक चीज सीखोगे तो फिर वो रिलेटेड टू दैट ना कि बस ये वो वहीं पे खत्म हो गई। ग्राफिक डिजाइनिंग में 5 सॉफ्टवेयर इंक्लूड है, उनके इतने फंक्शंस हैं, डिटेल्ड सॉफ्टवेयर हैं, तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। अच्छा, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे फाइवर से। 10 मिनट्स का आप लोग को ब्रेक दिया जाता है, नमाज का और थोड़े से रेस्ट का, मुझे सुन सुनकर पक गए होंगे आप लोग भी। तो 5:30 टिल 5:31 हमारा ब्रेक चलेगा। एंड काइंडली जिसने भी गलती से ड्रॉ कर दिया है पेज पर तो आगे ख्याल रखो नहीं करो ड्रॉ, सही है। चलें, थैंक यू सो मच, टेक योर 10 minutes break, we will be back and we'll discuss more.
Okay, sorry for being a little late. You can start. Okay, I'm starting it back. So, am I audible? ओके, थैंक यू। अब अगर हम आए कैटलॉग डिज़ाइन पर, अगर आपने कभी किसी का मेन्यू देखा हो या फिर जो बहुत बड़े-बड़े सेलर सेंटर्स होते हैं, चेज़, इम्तियाज़ वगैरह, तो ये अपना एक कैटलॉग डिज़ाइन करवाते हैं, तो इसकी डिज़ाइनिंग का पूरा एक अपना बैकग्राउंड है। उसके बाद हमारे पास फ़ोटोशॉप की एडिटिंग का एक अलग वो है। वेबसाइट्स में हम जब वेबसाइट कोई खोलते हैं, तो जो ओल्ड वेबसाइट्स होती थी उसमें अक्सर बैनर्स आते थे ऊपर। अभी भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स नहीं होती, उनमें बैनर्स आते हैं। तो उनके बैनर्स को डिज़ाइन करना, ये कि ये आपकी सिर्फ ये इतना बैनर डिज़ाइन होगा, तो इसका अपना अलग पोटेंशियल है। उसके बाद वेब के बैनर्स, टैटू डिज़ाइनिंग के आप पहले उसका जो है विजुअल बना के सेंड कर दो कि इस तरह के बन सकते हैं। बिल्डिंग की मॉडलिंग और इंफॉर्मेशन, ये जो है अक्सर 3D मॉडलिंग में होती है, लेकिन जो आप 2D डिज़ाइन आप उसमें भी बना सकते हो, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में। लैंडस्केप डिज़ाइन हो गया आपका, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, खैर ये सारी चीज़ें जो है फिर ये 3D मॉडलिंग्स में आ जाती हैं, ये उसमें नहीं आती 2D में। फिर ये सब 3D में चला जाता है। हाँ, ये शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स पे आपके लोगोज वगैरह जो होते हैं, ज्वेलरी का आपका डिज़ाइन, ये इसमें आ जाता है। इन्फोग्राफिक्स आप बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस के भी इसमें डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, रेज़्यूमेस के भी आप टेम्पलेट्स इसमें क्रिएट कर सकते हो। ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। ये 3D मॉडलिंग कुछ हद तक इन्वॉल्व होती है, डिज़ाइनिंग में ही आती है, लेकिन कंप्लीटली डिज़ाइनिंग का पार्ट नहीं होती। ठीक है, टेल अबाउट यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस। अब मैं ये वेबसाइट यूज कर रही हूँ, तो कहाँ से कहाँ मैं रीच कर रही हूँ, ये इस वेबसाइट का यूजर इंटरफेस है। तो ये पहले वो प्रोग्राम नहीं करवाते डायरेक्ट जाके, वो जो है ये डिजाइन करवाते हैं कि यहाँ पे हमारे ये जो फील्ड्स हैं जितनी भी, वो यहाँ पर होंगी, और जो क्या कहते हैं हमारे पास ऑप्शंस होंगे डिफरेंट, कि इस फील्ड में कितने ऑप्शंस हैं। अगर ये फील्ड खोलिए तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे शो होंगे, इसके ऑप्शंस। ईमेल डिज़ाइन आप पूछ रहे हो, ईमेल डिज़ाइन में आपको एक खोल के दिखा देती हूँ। ईमेल डिज़ाइन भी होता है प्रोफेशनल, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़, या यहाँ पे तो इतना इन नहीं है, लेकिन ये वेस्ट में बहुत ज़्यादा इन है ईमेल डिज़ाइन। आपके पास ईमेल्स अक्सर आती हैं, तो उसके अंदर आपको इस तरह के ऑप्शंस, कॉल टू एक्शंस बटन शो हो रहे होते हैं। मेरे पास अक्सर आती हैं, तो लाइक मैंने किया हुआ है सोशल मीडिया से उनको सब्सक्राइब, तो इस तरह की ईमेल्स अक्सर आ जाती हैं कि डायरेक्ट कॉल टू एक्शन बटन वहाँ पे मेंशन होते हैं, कि उसमें भी ग्राफिक्स प्रेजेंट होती हैं और ग्राफिक सिग्नेचर भी लोग अपना बनाते हैं। तो दिस इज यूआई यूएक्स डिज़ाइन। फिर हम बात कर रहे थे बेसिकली कि हमारे पास पोटेंशियल क्या है। फाइवर जो है हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल है, यहाँ पे आपको गिग बनानी पड़ती है। जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिखाया था लिंक्डइन का, वैसे ही आप एक डिस्क्रिप्शन लिखोगे, आप उस पर एक क्रिएटिव पोस्टर बना के डालोगे कि मैं ये काम आपका कर सकता हूँ, और उसके बाद आप वो गिग के 3 पार्ट्स आएंगे आपके, बेसिक, प्रीमियम और स्टैंडर्ड, कि आप किस में क्या क्या दोगे। प्रीमियम जिसमें ज्यादा ऑप्शंस दोगे उसकी प्राइस ज्यादा होगी, बेसिक जो कम ऑप्शंस होंगे प्राइस कम होगी। तो फिर क्या कहते हैं, लोग देखते हैं और आपको रिक्वेस्ट, आपको क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि मुझे बेसिक प्लान चाहिए आपका, या प्रीमियम प्लान चाहिए। और उसके बाद इधर फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट का भी होता है, कि कोई जो है चाहता है कि मुझे एक ईमेल डिजाइन करवानी है सपोज दैट, तो वो बायर रिक्वेस्ट में आ जाता है कि भाई आई वांट अ ईमेल डिजाइनर, या आई नीड अ ईमेल डिजाइनर। तो फिर वहाँ आप जाके आप उस पे बिड करोगे, उसको बोला कि हाँ मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतनी ईमेल डिजाइन कर चुका हूँ। फिर अपवर्क, अपवर्क और फ्रीलांसर दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। अकाउंट बनाना पड़ता है, अपवर्क पे अकाउंट जल्दी अप्रूव नहीं होता, फ्रीलांसर पे हो जाता है। तो स्टार्ट ऑन फ्रीलांसर एंड देन गो टू अपवर्क। यहाँ पे आपको वही डिस्क्रिप्शन हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, कि आप सोशल मीडिया पर हो तो आपको अपने बारे में बताना पड़ता है, फिर आप बताओगे तो फिर आगे बढ़ोगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं इन वेबसाइट पर, कि लोग बोलते हैं हमें ये इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करवाना है, हमें ये पोस्टर डिजाइन करवाना है। वहां जाके आप जो
है उन पर बिड करते हो, उनको बोलते हो कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इतने पोस्टर डिजाइन किए हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक टेम्पलेट पोस्टर भी डिजाइन कर सकता हूँ, तो आप मुझसे क्या कहते हैं पर्सनल मैसेज में बात कर लें। अगर उनको अच्छा लगता है प्रपोजल, वर्क प्रपोजल, और आप प्रीवियस वर्क भी शेयर करते हो, तो वो फिर क्या कहते हैं आपसे कांटेक्ट करके बात करके आपको प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो ये दोनों ऐसे सिमिलर है। इसी तरह Brew.com और पीपल पर आ रहे हैं। तो ये 6 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन अर्निंग बहुत इजीली कर सकते हो। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई आपके साथ पेमेंट का फ्रॉड नहीं होता। फेसबुक पे मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अक्सर फेसबुक पे फ्रॉड भी हो जाता है, लेकिन बहुत से जेन्युइन क्लाइंट्स भी फेसबुक से मिलते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे ये वेबसाइट्स ओन करती हैं इनको। अगर आपका वो पोस्ट हो गया, पेमेंट नहीं हो रही, अच्छा ये वेबसाइट अपना भी शेयर रखती हैं आपकी अर्निंग में। अब मैं कुछ फेमस ग्राफिक डिजाइनर्स का बता दूं, ये अब बहुत बड़ी कंपनी की न्यूयॉर्क सिटी में है, ग्राफिक डिजाइनर है जेसिका वॉल्श, और इनकी जो ग्राफिक्स होती हैं वो थोड़ी एस्थेटिक्स होती हैं रिगार्डिंग 90s के, उनमें 90s का थोड़ा ओल्ड लुक आता है। फिर यहाँ पे जो जैसन सेंटा मरिया है, इसमें ये इसका क्या है कि इसकी ग्राफिक डिजाइन ट्रेडिशनल होते हैं, टाइपोग्राफी ज्यादा इन्वॉल्व होती है जिसमें फॉन्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। एंड अनर और इन लोगों ने अब तक मिलियंस में अर्निंग कर ली है अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग से। ओके, तो बेटा इट्स काइंडली टेल मी हाउ टू मेक अपवर्क आईडी प्रोफेशनल। इसकी अलग से पूरी फील्ड है कि कैसे आप वो करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मैं बताऊंगी, दिस इज़ अ ग्राफिक डिजाइनिंग वर्कशॉप। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सर्च करो, किसी सीनियर से गाइडेंस ले लो, तो यू कैन मेक। और कुछ लोग की फॉरन अप्रूव हो जाती है, कुछ लोग की डेज लेते हैं। डिफाइन टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होते हैं बेसिकली, आपने जो काम किया हुआ है, मतलब आप जो काम करना चाहते हो, आप एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हो, वो एक बेसिकली पहले से मौजूद है। आपने एक वीडियो डिजाइन करनी है, वो पहले से मौजूद है, बस आप उसमें क्या कहते हैं अपना नाम वगैरह ऐड करो, अपने लोगो, उनके लोगो हटा के अपने लोगो ऐड करो, तो ये टेम्पलेट्स होते हैं। जस्ट अगर मैं आपको टेम्पलेट्स दिखाऊं, कैनवा के ही दिखा देती हूँ। ये होते हैं आपके पास टेम्पलेट्स। क्या आपके पास पहले से ये इस तरह का बना हुआ मौजूद है। अब आपने इसमें क्या एडिट करना है, कहाँ पे आपने लिखना है। अब ये सीवी इस तरह बना हुआ है, ये इसका बना हुआ हमारे पास मौजूद है। अब हम देखेंगे इसे, अच्छा हमें अच्छा लग रहा है, हम इसकी डिटेल्स हटा के अपनी डिटेल्स ऐड कर देंगे। तो ये होते हैं टेम्पलेट्स। तो प्रोफेशनल लोग टेम्पलेट्स बहुत कम यूज करते हैं। टेम्पलेट्स जो है बेसिक यूजर्स के लिए होते हैं, प्रोफेशनल यूजर्स के लिए टेम्पलेट्स नहीं होते। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। आप जो है फेसबुक पर रीच आउट कर सकते हैं, थ्रू ईमेल, थ्रू नंबर रीच आउट कर सकते हैं। अपना फीडबैक आप ज़रूर रिकॉर्ड करवाइएगा अबाउट दिस वर्कशॉप। इट विल बी a token of happiness or appreciation for me, and I'll be very thankful. दूसरा ये कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स लॉन्च करवा रहे हैं अपकॉन ट्रेनिंग वाले, और इसकी जो टाइमिंग होगी वो वीक में 2 days होगी, 2 hours की आपकी क्लास होगी पर डे। और इसकी जो है यहाँ इन्होंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस मेंशन किए हुए हैं 2500 फॉर पर मंथ। ठीक है, प्रोफेशनल यूजर क्या यूज करता है इंस्टेड ऑफ टेम्पलेट्स, इट डिपेंड्स, क्योंकि आपके पास वीडियोस की भी टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं, आपके पास उसकी भी टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं, फोटोज की, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइंस की। तो आप जो है प्रोफेशनली इन पर नहीं जाते, आप खुद क्रिएट करते हो। अगर आप सोशल मीडिया या बैनर्स की बात कर रहे हो, तो फिर आप उसे फोटोशॉप खुद डिजाइन कर रहे होते हो, आप जो है टेम्पलेट्स यूज नहीं कर रहे होते। लेकिन सम टाइम जब आपने रैंडम पोस्ट करनी है, जैसे अब कुछ लोग फेसबुक पेज चलाते हैं, जस्ट कोट्स पोस्ट करते हैं, तो उसमें आप क्या कहते हैं टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो, दे आर गुड टू गो। कोई रिमाइंडर पोस्ट करना है, जस्ट जर्नल है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट नहीं है, कोई ब्रांडेड कंटेंट नहीं है, तब आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। कोई ब्रांडेड कंटेंट है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो फिर आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज करोगे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं अपकॉन ट्रेनिंग के ये जो नंबर और ईमेल मेंशन है यहाँ पे कांटेक्ट करके इनरोल हो सकते हैं। एंड
जो हमारे पास फीस है 2500 पर मंथ, तो अगर आप विद इन अ डे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आज अपनी सीट बुक करते हैं, तो इट विल बी 2000 फॉर यू. And if you guys have any queries, any question regarding the presentation, regarding graphic designing, I am here to answer all of your questions. Kindly shoot. I'm waiting for your questions. You can ask question now. From him. Course is starting from coming Monday. And yes, if you are willing to take participate in the course, then आप लोग डेज भी सजेस्ट कर सकते हो अभी कि कौन से डेज आपके लिए फीजिबल होंगे फॉर ज्वाइनिंग, आइदर इट्स वीकेंड और वीकडेज और टाइमिंग. तो जो जिसके वोट ज्यादा होंगे, जो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, तो we haven't decided the timings yet. टाइमिंग के लिए इट्स अप टू यू कि आप लोगों को नाइट टाइमिंग चाहिए, आइदर 7 to 9, 9 to 11, और द इवनिंग टाइम, क्योंकि मॉर्निंग और आफ्टरनून में अक्सर लोग बिजी होते हैं रिगार्डिंग देयर जॉब्स एंड अदर स्टफ. तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि इफ इट विल बी इजी फॉर यू और नॉट. एंड डेज भी आपकी चॉइस के हो सकते हैं, तो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स हाउ मेनी पीपल आर एक्टिव, इफ आई कैन. We have 20 users active. Kindly write in the comment box. All 5 software will be taught in the detail with in a month. No, it will be in 2 months. 2 months में ये सारे 5 सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड हैं, या मैंने ही इनकी आउटलाइन बनाई है, कोर्स आउटलाइन. सो या, it will take 2 months to learn these 5 softwares. And yes, any other question, anyone? So okay, first of all, Adiba, Adiba Jafar, Adisha Shakil. आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज या कुछ रिलेटेड रिगार्डिंग इंटर्नशिप, सॉरी, आपने कुछ रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन पूछना है? एंड रूबा सिद्दीकी, बख्तावर, नीरज, हानिया, कोई भी क्वेश्चन है आपको रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, नॉट रिगार्डिंग कोर्स, और या कोई भी फील्ड आप जिसके बारे में जानना चाहती हैं फाइवर पे या कुछ भी? We have okay, thank you so much, Adiba, it means a lot. And how is 6 to 8 timings for you all? Hamnan, Shad, Rashi, Hussain, Rehab, Abid, Rimsha, Arshad, Shafaq, Huruj. Anyone, do you have any question regarding the presentation, regarding anything? It can be shared. अगर कोई स्टोरी बोर्डिंग के हवाले से क्वेश्चन है कि how to use that and where you can find the jobs, anything, I'm here to answer or address all of your questions. So I would love that if you ask questions. Best possible way. Digital art. Yes, digital art is part of graphic designing, but it's a vast field जिसमें आप digital painting भी करते हो, बाकी सारी चीजें भी करते हो, लेकिन
हाउ इलिस्ट्रेटर बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लेता है डिजिटल आर्ट का, बाकी डिजिटल पेंटिंग का पार्ट ग्राफिक डिजाइन के कोर्स में इंक्लूड नहीं होता। वो इट्स अप टू द पैशन कि अगर वो कोई करना चाहे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा आपको एक्सेल चाहिए होता है एट दिस स्पेसिफिक फील्ड। एंड इट वाज, I can't read your name. Oh, thank you so much, Aruba. It was a wonderful session. You can ask any question. Thank you so much. Thank you for all the appreciation that I have got up till now. So I've got one new message. स्कोप ग्राफिक डिजाइनिंग का पाकिस्तान में कितना है? अगर सिर्फ आप पाकिस्तान की बात करना चाहती हैं, फ्रीलांसिंग को छोड़ के सिर्फ आप जॉब्स की बात करना चाहती हैं, तो आज के टाइम हर ऑफिस में, हर स्कूल में देयर इज अ वन पोस्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनर, हर फर्म में है। एक की तो मैं सिर्फ बात करी, बहुत सारी एजेंसी ऐसी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर हाउस हैं, वहाँ तो मल्टीपल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, जहाँ पे मतलब जो बेसिक स्कूल हैं या बेसिक शॉप्स हैं, वहाँ जो है आपकी एक सीट तो फिक्स है। अगर आप फिजिकल की बात कर रही हो, ऑनलाइन का भी बहुत स्कोप है पाकिस्तान में। लोग फ्रीलांस करवाना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू किसी को फिजिकली पूरे टाइम के लिए हायर करें। तो ज्यादा फीजिबल होता है कि आप जो है जस्ट अपना लोगो डिजाइन करवा लें, पोस्टर डिजाइन करवा लें। तो फिजिकल में अगर मैंने आपको फिजिकल बताया, तो ये कि हर स्कूल में, हर स्कूल की हर ब्रांच में, हर जगह पर आपके पास एक सीट ग्राफिक डिजाइनिंग की कंफर्म है, क्योंकि वो आपसे कैटलॉग भी बनवाएंगे, अपना आपसे कोर्स आउटलाइन भी डिजाइन करवाएंगे, आपसे अपना लेटर हेड भी बनवाएंगे, डिफरेंट क्या कहते हैं नोटिस वगैरह, आपके डिफरेंट पोस्ट बन रही होती हैं सोशल मीडिया पे। अब हर अच्छे स्कूल की प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, तो उसको हैंडल करने के लिए सोशल मीडिया मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर की नीड होती है। तो कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं, अब जैसे आप ग्राफिक डिजाइन लर्न करें और इसके साथ आप डिजिटल मार्केटिंग भी लर्न कर लें, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, तो ये क्या होता है, आपकी स्किल्स के चार चांद लग जाते हैं। फिर जो सामने वाला बंदा होता है, कंपनी होती है, उसको होता है कि हाँ मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हायर कर रहा हूँ और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो जाएगी, तो बस मेरे जो है ना क्या कहते हैं, मुझे एक ही बंदे में दोनों क्वालिटीज मिली हैं, तो इट विल बी बेस्ट। तो कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं कि उसके साथ आप दूसरी स्किल्स लर्न करें तो चार चांद लगा देती हैं आपके। कैटलॉग का एक्सप्लेन कर दूं? कैटलॉग मैं जरूर कर देती हूँ, कैटलॉग का एक्सप्लेन। These are catalogs कि आप जो बुक्स वगैरह आपके स्कूल में अगर ऑर्डर करवानी है, सपोज दैट, तो वो क्या करेंगे, वो जो है बुक्स के आपको पब्लिशर्स और उन सब के बना के आपको एक पूरा कैटलॉग बना के भेजेंगे। या पेरेंट्स के लिए अगर आपने देखा हो जो एडमिशन के टाइम पे मिलता है, आई डोंट रिमेम्बर कि क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस, वो पूरा डिजाइन होता है कि भाई स्कूल है हमारा, इसमें बच्चे ये करते हैं, प्रिंसिपल का मैसेज ये है, हमारा मोटिव ये है, इसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमारा यूनिफॉर्म कोड ये है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये है, हम इस तरीके से लेके चलते हैं, हमने पिकनिक भी कराई लास्ट ईयर, एनुअल हम गए, तो स्कूल के ऐसे होते हैं। और एनुअल रिपोर्ट का भी कैटलॉग होते हैं, इसके डिजाइन बनते हैं। तो ये कैटलॉग मेन्यूज वगैरह बनते हैं। कैटलॉग अगर आप देखो, चेस का देख लेते हैं, चले हम, इसमें इस तरीके से वो अपना एक फ्रंट पे डिजाइन करवाते हैं और फिर अंदर इनकी पूरी बुकलेट होती है कि भाई हमारे पास ये चीज है और ये इतने की है, और अगर एंड ऑफ द ईयर बना रहे हैं कि भाई डिस्काउंट लगा हुआ है, ये चीज इतने की थी, आपको अब इतने की मिल रही है, तो दीज आर कॉल्ड कैटलॉग। इस तरह मेन्यू डिजाइनिंग होती है। आप किसी भी उसमें जाओ, रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, तो अब रेस्टोरेंट में क्या काम है ग्राफिक डिजाइनिंग का, भाई मेन्यू डिजाइन है, उसकी रेस्टोरेंट का भी पेज है, उसको चलाना है, उस पर पोस्ट बनानी है। तो यार ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत स्कोप है। आप अगर इसका एक सॉफ्टवेयर भी बहुत के पूरे हार्ट और माइंड पुट करके लर्न कर लेते हो और इसमें फुल एक्सेल हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, तो यार मेरा नहीं ख्याल कि आपको घर से बाहर जाकर इनकम करने की कुछ जरूरत पड़ेगी। यू कैन अर्न फ्रॉम होम, और इतना अर्न कर लोगे जितना लोग फिजिकल जॉब में नहीं कर रहे होते। तो या थैंक यू एवरीवन फॉर योर क्वेश्चंस, और बल्कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे।
Thank you very much. And it's an honor to give this workshop. Thanks to Upcon Trainings as well. And kindly leave a feedback on the given link and kindly review it. And it's my pleasure. It's like I'm feeling really grateful for being with you here. Inshallah, I'll see you all in the course and we will learn more together. Okay. Till then, take care. Allah Hafiz.